Yes, fine. So are you able to see my screen now? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, Ajay. Okay, fine. So yesterday, I think we had already discussed all the things, majority of the things. We have discussed confusion matrix. We discussed recall and sensitivity, precision recall, classification matrix, accuracy, specificity. This okay. So we were at ROC curve. Okay. So actually, what happens when we are generally by default the threshold is 0.5 in the logistic regression, and if the probability of happening of any class, if its probability is more than 0.5, then it is classified as class positive, and if it is less than 0.5, then it is classified as class 0, that is a negative class. So the classification is entirely depends on this threshold. So and we can actually change the threshold as per our requirement. Okay, let's say we because threshold, if we are going to change the threshold, then our classification is going to change. So in that case, let's say we have specific business scenarios. Let's say in that case, we have the cancer scenarios. In that case, precision was more important than recall. So in that case, we can change our threshold anytime, and we can adjust the threshold so that it can suit our requirement. Okay, so but it is very difficult for us to change the threshold for each and every time, because threshold is from 0 to 1. So it is very difficult for us so that we can keep on changing threshold and actually checking the result and actually checking the confusion matrix. So it is a very cumbersome task. So then we have the ROC curve. So ROC curve helps us actually. ROC curve gives us a overall picture of the entire model, how it is working, okay, on the different thresholds. So it gives a clear picture. So we can using the ROC curve, we can finally we can judge, or we can find out which threshold actually more useful for me. If I am going to use more true positive rate, okay, then I will go for the curve that is more suitable to us, and for which threshold actually it is giving me the more true positive rate. Let's see, if I am going to be have more precision than the recall, so I will be having the precision and the recall curve. In that case, it is also built up on the different threshold. So it gives me the clear picture that which threshold should I use to have the more precision. So ROC curve or the precision recall curve this gives me the clear picture of the different threshold, how my model is actually working. Okay, so it is actually called receiver operating characteristics. Summarize the model performance by evaluating the trade-off between true positive rate and the false positive rate. That is 1 minus specificity. Okay, so what is the true positive rate? True positive rate is true positive divided by true positive plus false positive. And also your false positive is false positive and divided by false positive plus, I think, true negative. This is your false positive rate. If I am right. If false positive, false is just right, true positive is this. Negative. And true positive rate is true positive plus false negative. Okay, here it is again false negative. True positive rate is not okay. Not actually. It should not be. True positive rate is nothing but your recall. Okay.
सर ठीक ही तो है, मतलब ट्रू पॉजिटिव में फॉल्स नेगेटिव भी आ गया ना। ओके फॉल्स नेगेटिव आ गया, ओके मैंने इसको ट्रू नेगेटिव लिखा है, दैट इज फॉल्स नेगेटिव, फाइन। फॉल्स नेगेटिव मतलब वो एक्चुअली शायद ट्रू ही होगा। ओके सो ट्रू पॉजिटिव वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव, तो इन ओके सो ये हमें आरओसी का हमें ये बताता है बेसिकली कि लेट्स से वी हैव अ सच अ सिनेरियो जहाँ पे मुझे अपना ट्रू पॉजिटिव मेरे को ज़्यादा करना है, तो इन दैट केस आई हैव टू एडजस्ट माई थ्रेशोल्ड इन सच ए वे कि मेरे को ट्रू पॉजिटिव मेरे को मैक्सिमम मिले। लेट्स से आई हैव a model, let's say in that case it is giving me, let's say go back to this thing, okay okay let's say the curve actually that giving is to me something like this, okay और जो ROC curve में जो मेरा curve है let's say this is something like this, मेरे पास कुछ pointing way है which is positive, let's say positive negative, and let's say again I have let's say negative, 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 and also have also one more negative kind of thing that I have positive. और जो मेरा graph है let's say this is my graph, so something like that. Okay, and let's say this is my 0.5. Threshold is this is 0.5, and let's say this is more like this is one threshold. Okay, this is one probability, this is 0.5 probability, or this is like 0 probability. Okay, so this threshold describes that this is a let's say negative point and there is a positive points. Okay, in that case, let's say if I take the threshold as a point of 5, in that case you can see that many of the negative classes are also classified as a positive class, and one of the positive classes is also classified as a negative class. So in that case, let's say if I'm going to change my threshold, let's say मैंने अपने threshold को थोड़ा shift किया और threshold मैंने let's say अपना shift करके let's say मैंने अपना threshold अब यहाँ पे कर दिया, let's say this is my threshold now, and let's say this is 0.9. So 0.9 के केस अगर आप देखोगे तो इसमें क्या किया बेसिकली 0.9 के केस में क्या हुआ, इसका ट्रू पॉजिटिव रेट कितना हो जाएगा, व्हाट इज इट्स ट्रू पॉजिटिव रेट, लेट्स सी ये हमारी पॉजिटिव क्लास, नेगेटिव को एक्चुअली पॉजिटिव क्लास मान के चलता हूँ, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इफ दैट कंफ्यूज आपकी पॉजिटिव क्लास है, लेट्स सी दिस इज द पॉजिटिव क्लास और ये आपकी नेगेटिव क्लास है, नेगेटिव क्लास, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव क्लास एक इधर आ गई और आपकी पॉजिटिव क्लास इधर आ गई, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं इसको 0.9 कर दूंगा तो व्हाट इज योर ट्रू पॉजिटिव रेट नाउ, 3/4 ट्रू एक्चुअली पॉजिटिव इज क्योंकि बेसिकली ट्रू पॉजिटिव रेट में क्या कर रहा है, बेसिकली सारे पॉजिटिव को एक्चुअली में सारे सम कर। हाँ ट्रू पॉजिटिव रेट को मतलब ट्रू पॉजिटिव कितने का बताया, मतलब पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव बताया था, ट्रू पॉजिटिव मेरे कितने होंगे बेसिकली, दिस इज पॉजिटिव इज 3 राइट, और टोटल कितने हैं मेरे, दैट इज माय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव मेरे कितने हो गए 3 प्लस फॉल्स नेगेटिव कितना है, एक भी नहीं है, 1. कोई फॉल्स नेगेटिव है, ये है ट्रू फॉल्स नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं लिखो उसको नेगेटिव बता रहा है राइट, हाँ हाँ इट इज 2, तो मेरा ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव वो हाँ ठीक है 3.5 और इसमें और मेरा फॉल्स पॉजिटिव रेट कितना हो गया मेरा, दैट इज माय फॉल्स पॉजिटिव रेट, व्हाट इज माय फॉल्स पॉजिटिव इन दिस केस, फॉल्स पॉजिटिव सर एक है फॉल्स पॉजिटिव ऊपर माइनस जो 1 पे चला गया 1/, मेरा फॉल्स पॉजिटिव रेट मेरा कितना है, मेरा फॉल्स पॉजिटिव होता है 1 फॉल्स अपॉन डिवाइड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव राइट, प्लस ट्रू नेगेटिव, तो फॉल्स पॉजिटिव एक ही है इस 1 हो गया, जो दिस इज माय माइनस, फॉल्स हाँ पॉजिटिव 1, 1/1 प्लस ट्रू टू नेगेटिव नेगेटिव कितने मेरे, टू नेगेटिव से एक भी नेगेटिव नहीं इसके है। नेगेटिव बनाया, इसने नेगेटिव को जैसे जो 3. 3. नेगेटिव उसको नेगेटिव बताया 1 2 3 हो गए राइट, Hmm. Hmm.
राइट, अच्छा हाँ, ट्रू नेगेटिव 3 है। 1/4। इस केस में लेट्स से मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें मेरे को ट्रू पॉजिटिव रेट अपना हाई करना है। लेट्स से कि मेरा पॉजिटिव को मुझे पॉजिटिव ज्यादा बताना है। लेट्स से मेरा कैंसर वाला केस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जिसमें मेरे को ट्रू पॉजिटिव रेट मेरे को हाई करना है। तो बेसिकली उसमें जितने भी पॉजिटिव केसेस हो वो बेसिकली मेरे सारे केस मेरे पॉजिटिव आने चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में, ठीक है, मुझे अपना थ्रेशोल्ड कहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। लेट्स से अगर मैं थ्रेशोल्ड शिफ्ट करके अपना यहाँ पर कर देता हूँ, लेट्स से अगर मैं थ्रेशोल्ड मैंने शिफ्ट होल्ड मैंने यहाँ पर कर दिया, लेट्स से दिस इज माय, लेट्स फॉर एग्जांपल 0.2, तो उस केस में अब ट्रू हाँ, पॉजिटिव रेट मेरा कितना हो जाएगा। अब मेरा ट्रू पॉजिटिव 1 2 3 5 बाय, सर तब भी वही ना, 5 अपॉन लेकिन उसने क्या किया, 5 प्लस हाँ 5 + 1 +1 ट्रू +1, राइट, बिकॉज दिस वन, फॉल्स पॉजिटिव ना। नहीं, हाँ ट्रू 1, पॉजिटिव रेट क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव हाँ डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ट्रू राइट। पॉजिटिव रेट बढ़ जाएगा सर। फॉल्स नेगेटिव कितना है फॉल्स मेरा, नेगेटिव व्हाट इज फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव जिसने की मतलब नेगेटिव नहीं था उसको नेगेटिव बताया, ऐसा कोई भी केस नहीं है, नहीं है एक भी, वही 0 राइट। 1 हो गया ना, 100% हो गया। 100% वन हो गया। यानी कि इस केस में अगर मेरे ट्रू पॉजिटिव मुझे हाई करना है तो मुझे थ्रेशोल्ड मुझे नीचे लेके आनी पड़ेगी। तो 0.9 वाले केस में मैंने थ्रेशोल्ड अपना जो मेरा टीपीआर मेरे हाईएस्ट चाहिए तो मैंने अचीव कर लिया, राइट। ओके, हाँ तो इन सच ए सिनेरियो जहाँ पे मुझे मेरा टीपीआर या मुझे चेंज करना होता है उसके हिसाब से, तो आई हैव टू चेंज माय थ्रेशोल्ड इन सच ए वे कि जो मैं अचीव करना चाहूंगा, इट इज द टीपीआर आई वांट द टीपीआर ऑन हायर साइड। ओके, ये मेरा आरओसी कर रहा है जिसमें मैं एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच मैंने ग्राफ बनाया। ओके, तो आरओसी कर्व आपका तब तक बहुत अच्छा काम करता है जब तक आपकी दोनों दोनों क्लासेस आपकी बैलेंस है, इफ क्लासेस आर बैलेंस्ड। क्लास बैलेंस्ड का मतलब? लेट्स सी जो मेरे पास सैंपल डाटा है जिसके ऊपर मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ उसमें ऑलमोस्ट दोनों क्लासेस 50-50% है। अच्छा जैसे कि मैं ये मान के चलना चाहता हूँ कि इन जैसे कि ऑल ओवर वो ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया ले लो कि मोर और लेस जैसे गर्ल्स और बॉयज की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 50% हो, दिस इज 1/2। अगर मैं दोनों का सैंपल लेके कुछ भी स्टडी करना चाहूँ तो क्लासेस मेरी एक्चुअली बैलेंस है। ओके, लेकिन इन द केस ऑफ कैंसर एंड नॉन कैंसर, तो कैंसर केस जिसके हिसाब के 0.1% होते हैं और 99% वो लोग किस वजह नॉन कैंसर होते हैं। अब मैं कैंसर को डिटेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरी जो क्लास होगी इम्बेलेंस होगी, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग डाटा सेट है उसमें 0.1% डेटा सिर्फ कैंसर का है और 99.9% डाटा मेरा नॉन कैंसर का है। इन दैट केस माई क्लासेज आर इम्बेलेंस्ड। तो अगर मेरी क्लासेस बैलेंस है तो मुझे एक ट्रू पिक्चर देता है। अगर मैं टीपीआर को बढ़ाऊंगा तो आई विल गो हैप्पी, ठीक है ना। लेकिन इसमें से मेरी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मेरी क्लासेस इनबैलेंस है तो अगर मैं एफटीआर देखूँ तो एफटीआर में एक्चुअली मेरा ट्रू निगेटिव आता है, ट्रू निगेटिव। तो ट्रू निगेटिव वाला केस ये है कि अगर मैं मान लिया मेरे पास ये निगेटिव क्लास मेरे पास ज्यादा है तो उस केस में अगर क्लास मेरी इनबैलेंस, बिकॉज यहाँ पे मेरा ट्रू निगेटिव आता है इस केस में, ठीक है, और ट्रू निगेटिव वाले केसेस लेट से ज्यादा है, तो ये मेरा बेसिकली ट्रू पॉजिटिव रेट और एफटीआर रेट मेरा बैलेंस मेरे को पिक्चर नहीं देगा। ओके, बिकॉज टू ऑलरेडी मेरी क्लास इम्बैलेंस है तो टू नेगेटिव मेरे हम पास हमेशा ज्यादा रहेंगे। ओके, तो टीपीआर और पीआर को मैं एक्चुअल में कंपेयर नहीं कर सकता, दैट विल नॉट गिव मी गुड पिक्चर। तो इन दैट केस मैं जो ग्राफ बनाता हूँ, मैं मेरा जो ग्राफ बनता है दैट इज इफ क्लासेस आर इम्बैलेंस देन आई विल गो फॉर द ग्राफ दैट इज बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। and recall. Okay, so if your class are balanced, then you go for the ROC curve. Then ROC curve will give you almost clear picture कि basically आपका different threshold पे आपका मॉडल कैसे behave करेगा। अगर आपकी क्लास इम्बैलेंस है, then your precision recall graph आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में वो आपको ज्यादा पिक्चर देगा। जैसे कि आप कोई भी मेडिकल एजेंसी या कोई मेडिकल सिचुएशन आप डिटेक्ट करना चाहते हो, उस केस में हमेशा आपका डेटा जो है इम्बैलेंस रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आपके पास इस तरह कुछ है कि बेसिकली आप कोई और तरीके का डाटा है, लेट से आप कोई आपके पास कोई डिफरेंट टू लीव्स हैं और लीव्स हमेशा लीव्स का डेटा है, लीव्स दो ही तरीके के आप तो क्लासिफाई करना चाहते हो, तो उस केस में आप फिर आरओसी का यूज कर सकते हो क्योंकि आपकी क्लास ऑलमोस्ट इम्बैलेंस्ड है, ठीक है ना। इम्बैलेंस में आपको प्रिसीजन रिकॉल का देखना पड़ेगा। ओके, लेट्स नाउ वी अगेन गो बैक टू द स्लाइड। अब हमारे पास ये आरओसी कर्व होता है, दिस इज आरओसी कर्व गिवन टू अस। ओके, तो अगर आप आरओसी कर्व देखो तो ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में बनता है। ओके, let's say in that case, okay, जब मेरे पास when I have a threshold 0,
मैं थ्रेशोल्ड की बात करता हूँ, जब मेरे पास थ्रेशोल्ड मेरे पास 0 है। तो जब मेरे पास थ्रेशोल्ड 0 होगा, उस केस में मेरा फॉल्स पॉजिटिव रेट कितना होगा, ट्रू पॉजिटिव रेट कितना होगा, बताओ। व्हाट बी माई टीपीआर एंड व्हाट बी माई एफपीआर? क्योंकि ट्रू पॉजिटिव रेट इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। जब मेरा 0 होगा, थ्रेशोल्ड का 0 तो सबको पॉजिटिव क्लास बता रहा होगा, राइट? एवरीथिंग इज पॉजिटिव क्लास, अब कोई भी नेगेटिव क्लास नहीं है बेसिकली। टीपी हो ओके, तो जाएगा। ओके, सो एवरीथिंग ट्रू पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव मेरे बिल्कुल 100% हो गए, राइट? और ट्रू पॉजिटिव ट्रू, अब फॉल्स नेगेटिव कितने हैं? जो एक्चुअली पॉजिटिव थे एक उसको भी नेगेटिव नहीं बता रहा है। है, एक भी नहीं है। सो दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू 1। ऐसे आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट आपका क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव डिवाइड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। इस केस में आपके फॉल्स पॉजिटिव कितना है, एक भी नहीं है, कि पॉजिटिव नहीं था लेकिन उसको पॉजिटिव बता रहा है। फॉल्स पॉजिटिव कितना होता है इसमें? फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा, अच्छे बताओ। फॉल्स पॉजिटिव होता है इसमें वो पॉजिटिव नहीं था लेकिन उसको पॉजिटिव बता रहा है, तो ऑलमोस्ट सारे जितने नेगेटिव सबको, पर इसमें तो सबको कोई पॉजिटिव तो बताएगा, सारे तो ऐसे नेगेटिव आ कैसे? गए ना, तो सारे नेगेटिव आपके ऊपर आ गए बेसिकली। जितने नेगेटिव थे वो हाँ। सारे फॉल्स पॉजिटिव बराबर हो गए। तो नेगेटिव, अरे ये क्या हो गया, तो नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव कितने होंगे आपके, एक भी नहीं, 0, तो किसी को भी नेगेटिव नहीं बता रहा, राइट? वो नेगेटिव को नेगेटिव बता ही नहीं रहा है, तो कितना हो गया आपका 0, सो इट विल कम टू 1। सो जब आप थ्रेशोल्ड 0 रखोगे तो उस केस में बेसिकली आपका ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव दोनों आपके इक्वल टू 1 हो जाएंगे, जो आपको ग्राफ से भी दिखाई दे रहा होगा। जब मैं थ्रेशोल्ड, यहाँ से आपकी थ्रेशोल्ड 0 से स्टार्ट होती है, थ्रेशोल्ड 0, ओके, एंड दिस इज योर थ्रेशोल्ड 1, ओके। तो आप थ्रेशोल्ड 0 रखते हो तो बेसिकली आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट और आपका ट्रू पॉजिटिव रेट दोनों आपके 1 होते हैं। स्टैंडर्ड सिनेरियो में आप क्या चाहते हो, स्टैंडर्ड सिनेरियो में आप हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये चाहते हो कि आपका ट्रू पॉजिटिव रेट आपका एक्चुअली मैक्सिमम साइड पर रहे, यानी कि जो चीज आप क्लासिफाई करना चाहते हो वो आपकी एक्चुअली सही तरह से क्लासिफाई हो, okay, because that is your positive case. So you want always, in the standard classification problem, you always want true positive rate on the higher side, okay? अगर मैं कैंसर को रेट करना चाहता हूँ, कैंसर मेरा हायर साइड पर होना चाहिए। सो इन दैट केस आपका हमेशा जो स्टैंडर्ड रहेगा, आपका जो आपका परफेक्ट ग्राफ होना चाहिए, परफेक्ट ग्राफ का ये होना चाहिए बेसिकली कि आपको बेसिकली आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट कितना भी हो, आपका ट्रू पॉजिटिव रेट हमेशा आपका 1 होना चाहिए, यानी कि वो ये ग्राफ आपको हमेशा ट्रू पॉजिटिव रेट का आपको ग्राफ ये मिलना चाहिए। फॉल्स पॉजिटिव रेट, इट आई एम नॉट वरीड अबाउट, कुछ भी हो। सो अगर मैं स्टैंडर्ड ग्राफ बना के चले जाऊं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, तो दिस शुड बी योर स्टैंडर्ड ग्राफ। तो अगर मैं 0 पे लेके जाऊं, अगर मेरा थ्रेशोल्ड 0 है तो उस केस में मेरा टीपीआर कितना होगा, व्हाट विल माय टीपीआर, ट्रू पॉजिटिव रेट? अभी तो आपने ओपन One. की। सॉरी, 1 1 के लिए, सॉरी 1 के लिए 1. बोल रहा हूँ, अगर ये मेरा 1 है अच्छा तो हाँ, सॉरी, ओके। ट्रू पॉजिटिव रेट 1 है तो सर उसमें सब 0 नहीं हो जाएगा? अगर 1 पे ही पॉजिटिव होगा हर चीज तो 1 फिर केस तो बताया, सबको नेगेटिव बताया था, ट्रू पॉजिटिव रेट में तो कितना होगा? हाँ, सबको हाँ सबको नेगेटिव बताना शुरू करेगा, पॉजिटिव को। तो ट्रू पॉजिटिव कितने, यानी पॉजिटिव थे और उनको ट्रू पॉजिटिव बता पॉजिटिव रहा है। 0 हो जाएगा, ट्रू पॉजिटिव पे ही 0 हो जाएगा, 0 अपॉन अब जो भी आप करोगे वो 0 ही होगा। ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस, तो 1 में किसी को भी ट्रू पॉजिटिव बता ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उससे थ्रेशोल्ड 1 से ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, 1 से ऊपर तो कुछ आएगा नहीं, ट्रू तो ये पॉजिटिव का ऊपर ही मतलब, 0 हो जाएगा। यस यस, अगर मैं इसको 1 कर रहा हूँ बेसिकली तो सबको नेगेटिव क्लास बता रहा है, राइट? तो ट्रू पॉजिटिव भी तो 0 हो ट्रू जाएगा पॉजिटिव कितने होंगे मेरे? 0, 0, ओके, कि एंड 1 व्हाट था इज और 1 माय ही बताया। जीरो, अब कुछ भी हो कोई और फर्क नहीं फॉल्स नेगेटिव पड़ता, वो कितना 0 होगा ही मेरा, होगा। यानी सर कि अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही होगा, ठीक है, कोई भी इट वैल्यू वुड बी होगी. 0, और मेरा वो 0 ही एफपीआर होगा। कितना होगा? वो एफपी पूरा एफपी हो जाएगा, क्योंकि वो सबको फॉल्स पॉजिटिव बताएगा। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स कितने पॉजिटिव हैं? मतलब, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स मतलब कि, पॉजिटिव मतलब 0 है बट 1 बता रहा है, वो सभी को बता रहा होगा, जितने भी होंगे उतनों को तो बता ओके, ही तो रहा फॉल्स होगा। पॉजिटिव मेरे कितने हो जाएंगे ऑलमोस्ट
टोटल पॉपुलेशन के बराबर। FP हाँ, नहीं जितने होंगे उतने को शो। नहीं, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं था लेकिन पॉजिटिव बता रहा है, तो ऐसा पॉजिटिव किसको भी नहीं बता रहा है, राइट? जीरो ही फॉल्स होगा, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है ही नहीं ना कोई, ना फॉल्स ना ट्रू। सर ये नहीं, फॉल्स लेकिन सर पॉजिटिव फॉल्स मतलब पॉजिटिव बता रहा है ना वो। नहीं बता रहा ना, किसी को भी नहीं बता रहा ना, पॉजिटिव तो किसी को भी नहीं बताया, तो फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू एक पॉजिटिव सेकंड फॉल्स। सर फॉल्स पॉजिटिव मतलब एक्चुअली वो नेगेटिव मतलब 0 है उसकी वैल्यू, बट प्रिडिक्ट 1 हो रही है। हाँ किसी तो को ऐसा, भी नहीं कर रहा हो 1, तो किसी को प्रिडिक्ट हाँ नहीं तो कर रहा ना एफपीआर वो। पे जीरो है, तो आपको ये भी एफपीआर 0 भी है। आपका जीरो हो गया। तो अब आपका ये अगर जीरो है वन वाले केस में, आपका ये दोनों जीरो वैल्यू जीरो हो जाती हैं, टीपीआर और एफपीआर। अगर आपका जीरो है तो आपके दोनों केसेस वन हो जाते हैं। लेट्स से अगर मैं फॉल्स पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव के लिए में हल्का सा मैं लेट से यहाँ पे ले आता हूँ, मैंने इसको लेट से अब आपकी थ्रेशोल्ड को लेट से मैंने 0.9 के आसपास कर दिया, 0.9 वाला केस लिया था। तो 0.9 वाले केस में हमारा क्या हो गया था, अगर पीछे वाला आपने केस देखा था, 0.9 वाले केस में हमारी कितनी आ गई थी, 0.9 वाले केस में उसमें हमारा ऑलमोस्ट वो आ 1 गया। आ गया था उस केस में तो। 0.9 वाले केस में हमारा कितना आ गया था, टू प्रेसिपिटेट 1 आ गया था, ठीक है ना, और एफपीआर मेरा कितना था, वो हमने चेक 1/4 नहीं किया था। तो ऑलमोस्ट आपकी मोरलेस साइन यहाँ के नहीं आस किया। यहाँ कहीं के आसपास आ जाएगी, ये इतना रहेगा और ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं हम्म। और कम करूंगा देखो, फिर आपकी मोरलेस इस कहीं इस तरह से आ जाएगी, या हो सकता है इस तरीके से आ जाए, तो आपका वो चेंज होता चला जाएगा। ओके, इन सच है कि अब लेट से मैं उसको, और अगर मैं ये वाला केस लेके चलूँ, जब मैं उसको 0.2 कर दिया, तो 0.2 वाले केस में मेरा क्या हो रहा था, 0.2 वाले केस में मेरा नहीं, ये 3.5 हो गया था, गलत बता रहे हो आप, 3.5 हो गया था, इट वाज 3.5, 3.5 पर कहाँ पे होगा, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं होगा, ठीक है, जितना भी होगा, राइट, 3.5 इज 0.6। सर बट ये केस टू केस पर डिपेंड नहीं करता कि मेरे किस बिल्कुल तरफ कितने बिल्कुल और केस टू कैसे केस, थ्रेशोल्ड बिल्कुल चेंज। केस टू केस डिपेंड करेगा। तो वही केस टू केस आपको ये आपको अलग अलग आपको ग्राफ भी देगा, किसी एक पर्टिकुलर डाटा सेट के लिए ये बना हुआ है, एक पर्टिकुलर डाटा सेट के लिए ये बना हुआ है, किसी पर्टिकुलर डाटा सेट के लिए डिफरेंट बनेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेट के डिफरेंट मॉडल्स का आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको ग्राफ बना के देगा। ओके, बट ये श्योर है कि वो हमेशा उस तरफ ऊपर की साइड ही बनेगा, ऐसे नीचे की साइड कभी कर्व बिल्कुल नहीं आ नीचे की साइड सकता। अगर वो बन रहा है तो उसमें आपके फॉल्स पॉजिटिव रेट ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब यानी कि बेसिकली आप जिसको पॉजिटिव करना चाह रहे हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव बता ही नहीं रहा, वो नेगेटिव बता रहा है, तो वो उस केस में आपने वर्स्ट मॉडल बनाया है, इसका मतलब, राइट, क्योंकि ये आपका वो वाला केस है जहाँ आपके ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव हमेशा आपके सेम है, यानी कि ये आपका ऑन एन एवरेज मॉडल से ही काम कर रहा है। जैसे कि लेट से आपके पास 100 आपके पास पॉजिटिव केस है और 100 लेट से आपके नेगेटिव केस है, तो ये 50 को तो बेसिकली पॉजिटिव बता रहा है, ये 50 को नेगेटिव से ही बता रहा है, तो 50-50 आपकी गड़बड़ हो गई, इधर की इधर 50 चले गई, इधर की इधर 50 आ गए, तो ये वो वाला केस है, दिस लाइन। ओके, अगर आपका मॉडल इससे भी बेकार काम कर रहा है कि 100 में से लेट से 40 को पॉजिटिव बता रहा है और ये 35 को नेगेटिव बता रहा है, करेक्ट, और आपके इधर 65 चले गए, इधर 60 आ गए, सो फिर आपका मॉडल जो बनेगा मोरलेस ऐसा बनेगा और ज्यादा खराब, वो आपका इससे भी नीचे आ जाएगा। क्या ऐसे बताया 50 ऊपर चले गए 50 नीचे आ गए, ये ऐसा ऊपर नीचे क्यों किया आपने? अगर वो 100 में से 40 को पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है ना, करेक्ट, तो जाहिर बात है बाकी को नेगेटिव बता रहा होगा वो, राइट। हाँ ऐसे अगर 35 हाँ। आउट ऑफ 100 35 को नेगेटिव बता रहा है, इसका मतलब उसको पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर कर दिया होगा, वो आपके फॉल्स फॉल्स हम्म। पॉजिटिव में चले गए होंगे, तो अच्छा उस हाँ, जो बॉक्स आप बनाते थे आप बोलते हम्म, थे ना, अगर अगर ये यहाँ नहीं आया तो उधर मूव हो जाएंगे ना वो। क्योंकि पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव नहीं बताया जाए, उसको नेगेटिव बता रहा होगा ना, फॉल्स नेगेटिव में चले गए होंगे, राइट। अगर हाँ, वो जो आप एक नेगेटिव नहीं बॉक्स से बता रहा है, शो करते थे ना यस, रिप्रेजेंटेशन की, टोटल 100 है, ऊपर मूव हो जाएंगे वो। अगर वो नेगेटिव को हाँ नेगेटिव ठीक नहीं है। बता रहा है, इसका मतलब फॉल्स पॉजिटिव मूव हो गए होंगे, तो उस केस में आपका ग्राफ फिर और हम्म खराब बनेगा नीचे की तरफ। सो आपका हम्म। मॉडल ऑन एन एवरेज डिफरेंट उस पर कितना अच्छा काम कर रहा है आपको बताएगा, बेसिकली जैसे आरओसी का, तो आरओसी का आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देता है। अब लेट से फॉर एन एग्जांपल आपको, अब आपको एक मोर और लेस एक ठीक ठाक पिक्चर आपको मिल जाएगी कि बेसिकली लेट से आपको, मुझे अगर ट्रू पॉजिटिव रेट अगर मेरे को हायर साइड पे चाहिए, तो ट्रू पॉजिटिव रेट बेसिकली आपको यहाँ पे हायर साइड पे है। अब आप देखोगे तो दिस इज योर, आप ये वैल्यू भी चूज कर सकते हो, आप ये वैल्यू भी चूज कर सकते हो, आप ये वैल्यू भी चूज, लेकिन आप देखोगे तो मोर लेस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक उसके बाद फिर आपका ये कम होना स्टार्ट हो जाता है ट्रू पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट आपका मोर लेस यहाँ ये आपको यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो उस वहां पे फिर आपको देखना पड़ेगा बेसिकली आपको 0.3 यानी आपको वैल्यू एटलीस्ट आपको 0.3 से ऊपर तो रखनी है, उसके बाद फिर आपकी बेसिकली कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद मतलब आपको पॉजिटिव साइड में मूव करना है। ओके, इसके नीचे करोगे तो आपका ट्रू पॉजिटिव रेट आपका कम होता चला जाएगा, फिर आपको ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ओके, सो ऐसे आप प्रिसीजन रिकॉल का कर्व भी बना सकते हो। सो आरओसी कर्व अगर मैं देखूं तो ओवरऑल मुझे डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे क्लियर पिक्चर मुझे देता है कि बेसिकली मुझे किस साइड मुझे मूव करना है। फिर हम आते हैं एयूसी, एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व मुझे ओवरऑल पिक्चर बता देता है कि मेरा मॉडल ऑन एन एवरेज डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे कैसा काम कर रहा है। तो एरिया, क्योंकि आप इसका अगर पूरे का अगर एरिया देखोगे, अगर एक ऐसा मॉडल बन गया है
ये और ये, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1। अगर मैं परफेक्ट मॉडल बनता है ये और ये, तो ये 1 हो गया बिकॉज दिस इज 1, दिस इज 1। ओके, अगर मैंने कोई और भी ग्राफ मेरा बनता है आरओसी, अगर मैं उसका एरिया अंडर कर्व निकाल लूं, तो बेसिकली मुझे बताता है कि ऑन एन एवरेज डिफरेंट थ्रेशोल्ड में मेरा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। तो एरिया जितना मेरा हायर साइड पे होगा उतना मॉडल मेरा अच्छा काम कर रहा है। हायर साइड का मतलब बेसिकली वो पॉजिटिव को पॉजिटिव बता रहा है, तो यही मेरा एक्चुअली पॉजिटिव को पॉजिटिव मुझे चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव बताएगा तो मेरा हो गया, क्योंकि मैं पॉजिटिव मेरा ज्यादा फोकस है। ओके, सो उस केस में जितना आपका एरिया हायर साइड पे होगा डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड के बावजूद भी, सो उसका मतलब मेरा ऑन एन एवरेज मेरा मॉडल उतना अच्छा काम कर रहा है। और एयूसी आपका जितना कम होगा, आप देखोगे एयूसी आपका कम कब होगा, जब बेसिकली वो आपका कम होता चला जाएगा, या आपका एवरेज इससे भी नीचे जाएगा तो एरिया और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो एयूसी एरिया आपका जितना कम होता चला जाएगा एरिया अंडर का, इसका मतलब आपका मॉडल उतना ही खराब परफॉर्म कर रहा है। एयूसी अगर आपका जितना अच्छा होता चला जाएगा, इसका मतलब आपका मॉडल ऑन एन एवरेज उतना ही अच्छा काम कर रहा है। तो आरओसी और एयूसी आपको एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छी पिक्चर आपको देता है कि बेसिकली आप एक वर्ड में समराइज कर सकते हो। अगर एयूसी आपका ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब आपका मॉडल ऑन एन एवरेज अच्छा काम कर रहा है। अगर कम है तो ऑन एन एवरेज आपका बुरा काम कर रहा है। उसके बाद फिर अपने ग्राफ को देख के फिर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, डिफरेंट थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करके फिर उसका ग्राफ को एडजस्ट कर सकते हो, सॉरी अपना आउटपुट को क्लासिफिकेशन को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, कि बेसिकली आपको ट्रू पॉजिटिव अगर आपको ज्यादा चाहिए तो बेसिकली उसी तरीके से आप अपना उसको मूव कर सकते हो। सर लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जो हम, जैसे प्रिसीजन और रिकॉल होता है, तो कभी हम फोकस करते हैं प्रिसीजन पे, कभी हम फोकस करते हैं रिकॉल पे। हाँ मैंने ऐसे रियल लाइफ में ऐसी हाँ, कुछ सिचुएशन आती है कि हम फॉल्स पॉजिटिव रेट को बढ़ाना चाहते होंगे। फॉल्स पॉजिटिव मतलब नेगेटिव केसेस को आप बेसिकली आप नेगेटिव केसेस को बढ़ाना चाहते हो, लेकिन वही वाली बात है, आप नेगेटिव केस को बढ़ाना चाहते हो जैसी बात है उसको आप हमेशा फिर पॉजिटिव मान के केस मान, वो बेसिकली आपको जब क्लासिफाई करोगे तो बेसिकली आप पॉजिटिव केस मान लोगे। ओके ओके, सो फॉल्स पॉजिटिव को आप कभी बढ़ाना नहीं चाहोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप बेसिकली क्लासिफिकेशन आप ट्रू पॉजिटिव के हिसाब से कर रहे हो, तो हमेशा आपका जो फोकस रहेगा ट्रू पॉजिटिव रेट पे रहेगा। अगर आप फॉल्स पॉजिटिव रेट को बढ़ाना चाहते हो फिर आप बेसिकली अपनी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को चेंज कर सकते हो। आप बेसिकली जो आपका नेगेटिव केस है उसको एक्चुअली पॉजिटिव मान के क्लासिफाई करोगे आप हमेशा। ओके, क्योंकि आपका फोकस हमेशा ट्रू पॉजिटिव रेट्स पे होता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो सिंपल, अगर आप चेक करना ये चाहते हो आपका, थ्रेशोल्ड चेंज कैसे करते हैं? अभी हम कोड में देखेंगे थ्रेशोल्ड कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये so, ये हाइपर आपको पैरामीटर हुआ ना इसका? यहाँ पर पैरामीटर है को नहीं, आपका लॉजिस्टिक में कोई यहाँ पर पैरामीटर नहीं होता, लॉजिस्टिक रिएक्शन बाय डिफॉल्ट 0.5 पे काम करता है। ठीक है ना, अगर आपको थ्रेशोल्ड चेंज करनी है तो आपको लॉजिस्टिक रिएक्शन के आउटपुट को यू हैव टू वर्क अराउंड ऑन दैट। ठीक है, ठीक है। सो ROC और AUC यूजफुल व्हेन क्लास इज बैलेंस, when there is unbalanced data then you go for the recall और precision का। तो यहाँ पर आपका बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव देख का आपका यहाँ क्या आ जाएगा, आपका प्रिसीजन आ जाएगा, तो दिस इज ऑलरेडी रिकॉल। ओके, फिर आप रिकॉल और प्रिसीजन का ग्राफ बनाओगे when your class is imbalanced. Okay, so I hope that is good. Fine. So now let's go and look at the code. बहुत ही सिंपल सा कोड है, आज बहुत सिंपल सा कोड करेंगे जिससे चीजें आपको समझ में आ जाए। Let's go for the code for the basic understanding. Not this one, this one, not this one. This is regression. So here we have our data for the logistic regression. Okay, and we have the data for the Titanic. सारी दुनिया इसको करती है, तो फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इसी को करेंगे पहले, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी समझ में आ जाए। देन वी गो फॉर द डिफरेंट डेटा सेट। ओके, सो इसमें दो डाटा है, ट्रेंड सीएसवी और टेस्ट सीएसवी। ओके, और आपका डेटा किस तरीके से आपको डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू जज कि बेसिकली आपका जो पेरेंट सर्वाइव, आपका जो पर्सन है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो डेटा इज गिवन इन सच ए वे, first parameter is survival, that it survived or not. 0 is no, 1 is yes. Okay, so actually you want to classify yes and so yes is your positive class. Okay, survive is your positive class, non-survival is your negative class. Okay, you have passenger class. What is the class of the passengers? First class passenger, second class passenger, and third class passenger. So there may be different classes, that even one might be the premium classes, second is normal, third is that one. The name of the passenger, sex of the passenger, male or female, age of the passenger, if they have siblings also on board. Okay, if they have any parents on the board, parents or children on the board, this is for siblings and this is for parents or children. Okay,
what is the ticket number, what is the fare of the ticket, what is the cabin. So maybe high class cabin or low class cabin, that will be different criteria. Okay, and embarked is a station from where they start the journey. Okay, because Cherbourg, Queenstown, Southampton. Okay, this is the your starting points for the journey. Okay, so let's read this data. Okay, let's explore the data. Train, the shape, here we can see 891. Only the age is having 7 and 4 data. That means the data is missing here. That is almost 150 data is missing. Okay, for the age. And here is the cabin. We have the missing data. Okay, and also we have the missing data for केबिन की तो वैसे भी मेरे ख्याल से क्लास कवर कर लेगा, तो केबिन की जरूरत okay. नहीं होगी. Embarked total 889. What is that? सर 3-4 डेटा मिसिंग है बस, 91 से 89. कुछ डेटा 2-3 कॉल, ठीक है ना, 2 डेटा मिसिंग है. ओके, सो एम्बार्क में आपका 2 डेटा मिसिंग है और बाकी केबिन में काफी, केबिन और एज में डेटा मिसिंग है. ठीक है ना. सो लेट्स गो फॉर द ट्रेन डॉट शेप. आपके पास 891 रिकॉर्ड है. ओके, और 12 आपके पास टोटल पैरामीटर्स है. ओके, अगर आप डेटा देखोगे तो आपका पैसेंजर आईडी आपका आ गया. ठीक है, सर्वाइव क्लास आपके आगे, नेम इस तरीके से आ गया, नेम 6 और ये आपकी कहानी. सिबलिंग्स कितने हैं? 1 सिबलिंग्स साथ ट्रेवल कर रहे हैं, पेरेंट्स कोई है नहीं, इसका मतलब कि 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं एक साथ. टिकट नंबर आपका, फेयर आ गया, केबिन अवेलेबल नहीं है, किस केबिन में था, एम्बार्क्ड आपका साउथहैम्पटन. दिस इज द डाटा दैट इज गिवन टू अस. अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप फिर भी कर सकते हो. ठीक है ना. जैसे कि फेयर ऑन एन एवरेज आपका टोटल इतना है, मीन इतना है, आई डोंट नो कि आपको पता है. डेटा आपने शेयर किया क्या हमारे साथ, ये वाला मिलेगा आप लोगों को आज. ओके, आई थिंक उसमें शायद शेयर ड्राइव में होगा भी, जो रजनीश ने आपको कोड दिया हुआ है ना शेयर ड्राइव, उसके गिटहब वहां पर पड़ा हुआ है. ओके ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कैटेगोरिकल डाटा कितना आपके पास इतने सारे कैटेगोरिकल डाटा है. नेम, सेक्स, टिकट, केबिन, एम्बार्क्ड. वो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा. केवल आपके सिबलिंग और पैटेक्ट आपके नॉन कैटेगोरिकल हैं और पैसेंजर क्लास और बाकी सब आपके कैटेगोरिकल है. ओके, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या दिया, वो ऑब्जेक्ट देखे जिसका डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डाटा टाइप कैटेगोरिकल होता है आपका. ओके, हमने ट्रेन कैटेगोरिकल को हमने डिस्क्राइब किया है. ठीक है, इसमें आप 889 है. यूनिक आपके कितने हैं? 3 हैं, यानी कि 3 है क्योंकि 3 ही क्लासेज हैं उसकी. टॉप क्लास आपकी एस है. इन द सेम केबिन आपका 204 है, यूकी 47 है. Okay, so that is you are giving some information to us. Now we have to do the feature engineering. Do I need to keep all the variables? Should I transform any variables? If there are any values, so how I'm going to fill these values? Okay, do I need to create some new variables out of the given variables? क्या मैं कोई नई feature create कर सकता हूँ? Okay, so that is how you are going to do the feature engineering. तो सबसे पहले देखते हैं हम name. Okay, 20 नेम उठाए स्टार्टिंग में, सबके नाम ऐसे ऐसे, नेम को डिस्क्राइब किया. काउंट है आपके 89, यूनिक है आपके 891. यानी कि आपके सारे जो आपके पास डेटा दिया हुआ है सब यूनिक है. अगर सारा डाटा यूनिक है, इसका मतलब बेसिकली आपको प्रोजेक्शन में या आउटपुट प्रेडिक्शन में कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा. इसका मतलब नेम इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट. ओके, सो मैं नेम को बेसिकली ड्रॉप कर सकता हूँ क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं. अगर सबके नाम ही अलग अलग है तो बेसिकली प्रेडिक्शन में कोई हेल्प ही नहीं करेगा मुझे, बिकॉज एवरीथिंग इज यूनिक. ओके, so I am going to drop this. I am not going to use it unless and until I am going to make a different parameter out of their name. Okay, कोई मैं नया parameter create कर लेता हूँ, that is a different thing. But as of now, because all the given data is unique, so they are not going to help in the prediction. सर ऐसे एक चीज पूछनी है, जैसे आपने यहाँ पे ये देखा यूनिक करके और सब कुछ यूनिक आया, ऐसे हम जैसे कोई भी बुक का डेटा लेते हैं तो हो सकता है कोइंसिडेंस में सब बुक का पब्लिशिंग डेट अलग हो, बट ईयर ऑफ पब्लिशिंग से या पूरे डेट से हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो अगर हम ऐसे ही उधर भी यूनिक के बेसिस पे ड्रॉप कर दें तो फिर तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें यूनिक देखकर ड्रॉप करना और कब नहीं करना? अभी तो चलो नाम है. You have to understand your data. अब लेट्स से जो बुक का है, बुक में आप देखोगे उसकी पब्लिशिंग डेट सबकी मोल है, सबकी अलग अलग होगी, लेकिन दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका द डेटा गिवन इन दैट फॉर्म इज नॉट यूजफुल फॉर यू बिकॉज दैट इज ऑल द यूनिक डेटा. बट कैन यू मेक सम
यूजफुल डेटा और यूजफुल पैरामीटर आउट ऑफ दैट गिवन पैरामीटर। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसकी एज निकाल लेते हैं कि वो कितना पुरानी है, या जैसे हाउस है, हाउस कितना पुराना है, राइट। सो अब जैसे नेम है, नेम के केस में इसमें कुछ भी आउटपुट यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता हूँ। इस केस में तो हम नहीं कर सकते, हाँ, बट अगर हमें किसी you have डेटा के बारे में पता ही ना हो ज्यादा तो in फिर that case कैसे you हम have to बोल सकते understand your data। अगर आपको अपने डेटा के बारे में नहीं पता है तो आप फीचर इंजीनियरिंग भी इतनी अच्छी नहीं कर पाओगे। then in that case you have to sit with the business and you have to understand the data कि actually ये जो मुझे डेटा दिया हुआ है, डेटा का मतलब क्या, what is the meaning of the data, and after to understand the data then you will be able to reach such a point that you can make the useful features out of that particular parameter। okay, so you have to understand your data, otherwise you will not be able to do the feature engineering। that is the first point। okay, okay, again let's go for the ticket। कि टिकट हमने देखा, टिकट भी आपका मोरलेस आप देखो सबका दिस इज नंबर गिवन टू अस। ओके, इसमें जो आप देखोगे तो 891, इसमें 681 आपके यूनिक हैं। ओके, इसमें अब आपका टिकट नंबर आपका यूनिक है मोरलेस आपका 681, बाकी आपका जितने भी आपके बच्चे हैं 681 आउट ऑफ 200 लोगों का ऑलमोस्ट सेम टिकट नंबर है। आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज हैपनिंग, टिकट नंबर सबका अलग होता है, ठीक है ना, मे बी सम यू नो बेस्ड ऑन समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो इस केस में इधर यू कैन यूज दिस डेटा, ठीक है। अगर आप इस डेटा को बिकॉज़ दिस इज कैटेगोरिकल डेटा, इस कैटेगोरिकल डेटा में बेसिकली आपका सिर्फ 681 आपका यूनिक डेटा आउट ऑफ 891, 681 आपका यूनिक डेटा। सो जो जनरली रूल होता है उसके रूल्स के हिसाब से अगर आपका 2/3 डाटा या 3/4 डेटा अगर आपका बेसिकली यूनिक है तो जनरली वो बेसिकली आपके प्रेडिक्शन में कोई हेल्प नहीं करता है। दिस इज मोर लेस द थंब रूल। okay, in that case we can say 681 is the unique values out of 891। that means more or less this is not going to help in the prediction। okay, because इससे में कोई अलग यूनिक डाटा मुझे बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो उस केस में एज ऑफ नाउ वी कैन ड्रॉप इट। उसके बाद हम लोग इनिशियली जो हम बेस मॉडल बनाएंगे उसके लिए हम टिकट को ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे उसको और इंप्रूव कर सकता हूँ देन वी विल ट्राई टू मेक अ हेल्पफुल फीचर फ्रॉम द टिकट, पर एज ऑफ नाउ वी जस्ट ड्रॉप इट। ओके, ओके, फिर हम आता है केबिन पे। केबिन अगर हम देखेंगे तो केबिन आपके NAN ये तो नहीं अवेलेबल ही नहीं है, C85, C123, E46 जिस तो आपके आप यहाँ पे भी देखोगे तो टोटल आपके 204 यूनिक केबिन्स है। ओके, टोटल आपके 204 टाइप के केबिन है, 147 आपके ऑलमोस्ट यूनिक है। ओके, इन दैट केस वी आल्सो कम इन सच अ सिनेरियो कि बेसिकली आपका 2/3 ऑफ द डेटा बेसिकली आपका यूनिक है, तो वी हैव टू डिस्कार्ड इट। लेकिन क्या मैं इससे यूजफुल डेटा बना सकता हूँ? तो इन दैट केस में अगर आप केबिन देखोगे तो केबिन बेसिकली आपका नंबर देखोगे तो आपका नंबर ऐसे आ रहा है C85, C96, C45। यानी बेसिकली आपका नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट नंबर है C है कि A है, B है, C है, वो आपका मोर इंपॉर्टेंट है। वो आपका बेसिकली क्लास में कैटेगराइज कर रहा है कि C क्लास का केबिन है कि A क्लास का केबिन है या B क्लास का केबिन है। सो उस केस में मैं क्या करता हूँ, आपका डाटा मोलस आप देखोगे इस तरीके का है, वो 4 क्लासेस में डिवाइड है। ए है, इसमें नहीं है, सिर्फ आपका A है, B है, C है, D है और E है। उसके बाद फिर आपके नंबर्स है, जैसे आप होटल्स में लेते हो ना, होटल में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 102, तो इस सबसे फ्लोर में इस हिसाब से मान लो कि A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास। सो हमें नहीं पता, लेकिन हम एक अजम्पशन मान सकते हैं कि बेसिकली आपका A वाले जो है वो सिर्फ एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर आपके नंबर्स हैं, यानी कि बेसिकली आपका A हो सकता है प्रीमियम क्लास रही हो, फिर B उससे थोड़ा नीचे रही हो, फिर B नंबर के केबिन से और फिर उसके नंबर्स डले हुए हैं। ओके, अगर मैं सबको एक साथ यूज करूंगा दे आर नॉट यूजफुल फॉर मी। सो व्हाट विल आई डू, आई विल कन्वर्ट दिस डेटा ओके टू ओनली 5 क्लासेस A, B, C, D and E। okay, because that give me is the actually useful information, actually what kind of cabin the passenger belong। okay, so in that case that is more important data for me as compared to the given C85 or C123। okay, so उसमें मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अब मैं का सिर्फ जो अपना केबिन है, Actually, we were missing this command unique in the last exercise. ओके कोई We were बात नहीं, struggling to find out unique values. इस तरह की बहुत सारी कमांड्स मिलेंगी आपको, बहुत कमांड है, ठीक है ना, वो आपको देखना पड़ेगा इसलिए आप चाहते क्या हो। आपको अगर ये पता है कि अपने डेटा में आप चाहते क्या हो तो फिर आप नेट पे सर्च मारो आई वांट द यूनिक वैल्यूज ऑफ द डेटा, तो आपको कमांड मिल जाएगी, कमांड आप यूज कर लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप डेटा के साथ करना क्या चाहते हो। ओके, वो आपको पता है तो आप एग्जैक्ट गूगल पे सर्च करो, एग्जैक्ट कमांड आपको मिल जाएगी, जस्ट यूज इट हियर। ओके, सो अब आपने क्या किया बेसिकली, मैंने पहले तो इसको कैटेगोरिकल को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया बिकॉज इट वाज गिवन एज अ कैटेगोरिकल, सो एज टाइप स्ट्रिंग मैंने कन्वर्ट किया इसको, ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद मैंने क्या किया, np डॉट अरे केबिन 0 फॉर केबिन इन कैरेक्टर केबिन, कैरेक्टर केबिन मैंने कन्वर्ट किया था इसको।
वैसे करेक्टर 0 यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट मैंने उसका उठा लिया, उसको न्यू केबिन में डाल दिया मैंने, यानी कि मैंने एक नया बेसिकली बना लिया है। ओके तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने बेसिकली एक नया कैटेगरी बना ली है, दैट इज न्यू केबिन। और न्यू केबिन के अंदर सिर्फ क्या वैल्यूज है, इसका सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट है। ओके केबिन 0। ओके फिर मैंने न्यू केबिन को फिर से कैटेगरी में कन्वर्ट कर लिया। ओके और आप देखोगे उसके बाद मैं देखूंगा तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई A B C D E F। ओके लेकिन अभी भी कुछ वैल्यू दैट इज n, दैट इज नॉट अवेलेबल काइंड ऑफ थिंग। ओके तो 687 आपके अभी भी हुए हैं जिसके लिए आपका डेटा अवेलेबल नहीं है, आई थिंक, राइट? दैट इज नहीं, दैट इज समथिंग एल्स। हाँ सर सही है। ऐसा ही है ना? सर शायद क्योंकि केबिल्स जो थे ना वो 204 थे सिर्फ यस अवेलेबल, बाकी मतलब आपके और n है। टोटल डेटा 800 कुछ था, तो मतलब 600 कुछ अवेलेबल ही नहीं थे। तो 600 आपका अनअवेलेबल है। उस केस में जो मेरे पास अनअवेलेबल डेटा है, यानी कि अब देखो अब मेरे पास केस ये आता है कि मेरे पास केबिन का डेटा मेरे पास दिया हुआ है A B C D E F G H T और बाकी का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना? सो नाउ हाउ कैन आई पुट द मिसिंग वैल्यूज हियर? डू आई हैव अ मैकेनिज्म? लॉजिकली कोई मैकेनिज्म, बिकॉज दिस इज कैटेगोरिकल डेटा एंड इवन अगर मैं एक तरीके से मैं सिर्फ इतना जरूर पता लगा सकता हूँ कि बेसिकली इसमें कि ए क्लास को कितने बिलोंग करते हैं, बी को कितने बिलोंग करते हैं, सी को कितने बिलोंग करते हैं, डी को कितने बिलोंग कर सकते हैं, तो वो मैं एक्चुअली मेरे को वैल्यू काउंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? डिफरेंट में से ग्रुप बाय अगर करूंगा तो उस ग्रुप बाय में करके मुझे पता चलेगा ए क्लास को कितने बिलोंग करते हैं। आप देखो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया, ए क्लास को 15 बिलोंग करते हैं, बी को 47, सी को 59, डी को 33, ई को 32, एफ को 13, जी को 4, टी को 1। सो इस केस में मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्लास बिलोंगिंग इधर बी सी डी और ई, और बाकी में आपकी क्लासेस कम है। सो या तो एक काम में कर सकता हूँ कि रैंडमली उसको बी सी डी या ई एक क्लास दे दूं, या मेजॉरिटी क्लास बेसिकली सी है उसको एक दे दूं, लेकिन स्टिल क्योंकि डेटा मेरे पास 687 बहुत बड़ा है तो उस क्लास में आई डोंट नो कि हाउ इट गोइंग टू बिहेव। मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको करने का, क्योंकि द डेटा वाज लॉस्ट, ठीक है ना? बिकॉज ये क्योंकि ये डेटा उस समय आपका कोई इंटरनेट तो होता नहीं था कि आपने जिसके टिकट काटे हैं जिसको फिर आपने क्लब असाइन किया है बेसिकली, तो वो डेटा आपका इंटरनेट पर चला गया, आपने वहां से पिकअप कर लिया, तो आज 100 साल पुरानी बात है। तो वहाँ पे जो आपका मैनुअली आप रजिस्टर होगा आपने उसमें नोट किया होगा, फिर आपका टाइटनिंग डूब गया होगा, तो हो सकता है वो डेटा आपका लॉस हो गया होगा। सो दैट्स एक्चुअली लॉस ऑफ द डेटा। तो उन पैसेंजर के लिए बेसिकली आपके पास केबिन की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। सो इन दैट केस इधर आई हैव टू फाइंड आउट अ वे कि मैं इसको मैं रिप्लेस कर पाऊँ। अगर मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता तो आई डोंट हैव एनी वे, मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसका नहीं डालना पड़ेगा कि मैंने उसको सिर्फ एन से रिप्लेस कर दो, और मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है। या एक बेटर तरीका ये हो सकता है कि मैं बी सी डी या ई में से, या बाकी में 687 में से इसको कुछ को मैं बी दे दूं, कुछ को मैं सी दे दूं, कुछ को मैं डी दे दूं, कुछ को मैं ई दे दूं, एज आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। जैसे कि टोटल मेरे पास 204 में से ए क्लास को कितने बिलोंग करते हैं 15, दैट इज ऑलमोस्ट 0.016%, ऑलमोस्ट जितने मेरा परसेंटेज हो गया उस उतने परसेंटेज को बेसिकली ए क्लास दे दूं, और बाकी जो मेरे 47 है जो भी इसकी परसेंटेज बैठती है उस परसेंटेज को मैं बी दे दूं, बाकी को सी दे दूं, मतलब मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं। एक तरीका मेरा ये भी हो सकता है, और एक तरीका मेरा ये हो सकता है कि मैं किसी को कुछ भी ना दूं, उसको एन क्लास मान के चलूं कि एन 687 जो है मेरे एन को बिलोंग करते हैं, एन केबिन को। दिस इज वन ऑफ द वे। सो नाउ दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट द वे कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना? ये तो ऐसा डेटा जो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन जनरली केसेस में ऐसा होता नहीं है। आपके पास डेटा जनरली, अगर आप रियल इंडस्ट्री में काम करो तो आपके पास जनरली डेटा आपके पास होगा, और डेटा को यू कैन अंडरस्टैंड। ओके देन यू कैन सिट विद द बिजनेस एंड देन यू कैन फाइंड आउट मैं इस डेटा को बेसिकली मैं अगर मिसिंग डेटा है तो मैं इसको कैसे इसको यूज कर सकता हूँ। तो बिजनेस आपको बहुत सारे क्लियर कट आइडियाज दे देता है। इस केस में मेरे पास क्लियर कट आइडिया मेरे पास नहीं है, सो मेरे पास दो ही तरीके हैं, तो इसको मैं एन करके छोड़ दूं, ठीक है ना? और मेरे मॉडल में भी एज एन करके जाएगा, ठीक है? एक नई नई कैटेगरी जो कि एन होगी, या फिर मैं वही कर सकता हूँ कि जो फिलहाल जो मेरा फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं बाकी के डेटा को मैं डेटा उसमें डाल सकता हूँ। दो ही तरीके मेरे पास है, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो उसके हिसाब से, जिसके हिसाब से कि बेसिकली फाइनली आपका जो प्रेडिक्शन आ रहा है सही आ रहा है। पहले आप ऐसा करोगे सिर्फ एन डाल के अपना मॉडल बना लो, फिर देखो प्रेडिक्शन आपका कितना आ रहा है, फिर जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करके देखो, फिर देखो बाकी में आपका मॉडल का प्रेडिक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। प्रेडिक्शन बढ़ रहा है तो फिर देन यू गो फॉर द सेकंड अप्रोच, अगर नहीं बढ़ रहा देन गो फॉर द फर्स्ट अप्रोच। सो यू हैव टू गो इन सच अ वे। ओके अंडरस्टूड, गुड। फिर हम आते हैं सर्वाइव पे। सर्वाइव अगर हम देखेंगे तो 549 सर्वाइव किए हैं, 342 सर्वाइव किए हैं, और 50
549 आपके नॉन सर्वाइव हैं। तो आपके 38% आपके सर्वाइव हैं, 61% आपके नॉन सर्वाइव हैं। और अगर मैं सेक्स के हिसाब से अगर मैं देखूं इसको, तो बेसिकली आपके मेल कितने सर्वाइव किए? मेल आपके सर्वाइव किए सिर्फ 109, 468 मेल्स आपके डाई हैं, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द मेल जो थे वो आपके सर्वाइव नहीं कर पाए। तो आपने मूवी भी देखी हुई, राइट? ओके, इवन अगर मैं नॉर्मलाइज करूँ परसेंटेज आ गया, दिस इज द परसेंटेज, 18% आपके सर्वाइव हुए हैं, 81% आपके नॉन सर्वाइव हैं। ओके, अगर मैंने सेक्स और सर्वाइव के हिसाब से अगर मैंने इसको ग्रुप बाय कर दिया, उसमें आप देखोगे तो फीमेल आपकी बेसिकली 233 आपकी सर्वाइव कर गई थी और मेल आपके 109। तो परसेंटेज देखे तो 74% फीमेल ने सर्वाइव किया था, सिर्फ 18% मेल ने सर्वाइव किया था। तो दिस इज जस्ट यू कैन गेट सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ योर डेटा। ओके, दैट गिव यू द इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इनसाइट अबाउट योर डेटा कि मेल और फीमेल। ओके, सो अब इसमें हमारे कितना डेटा मिसिंग, हम मिसिंग डेटा की बात करते हैं। अब हमारे पास एज में 177 डेटा मिसिंग है और आपके एम वाक में 2 डाटा मिसिंग है। उसमें हमने पी क्लास में हमने उसको एन डाल दिया है। ओके, तो नॉन अवेलेबल डेटा वी हैव गेटेड एन। ओके, ठीक है, क्योंकि एन ए में एन था सबसे पहला करेक्टर, उसने एन ए को उठा के एन इसमें डाल दिया है। ओके, हमने उसको एक नई क्लास मान ली फिलहाल के लिए। ओके, अब एज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एज में अगर आप देखोगे बेसिकली तो आपका मेजोरिटी ऑफ, अगर मैं एज का बनाऊं आपका हिस्टोरिकल हिस्टोग्राम, तो आप कैसे दिखाई देता है मोरलेस कि मेजोरिटी ऑफ जो आपके लोग थे जो ट्रेवल कर रहे थे जनरली वो आपके बेसिकली 20 से इनफैक्ट आपके 15 से लेके ऑलमोस्ट 35 तक के एज के लोग ज्यादा थे उसमें। ओके, तो आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द क्लास आपकी बेसिकली वही 15 से लेके 35 के बीच में डिपेंड करती है। अगर मैं इसका मीडियन निकालूं तो मेरा मीडियन मोरलेस कितना आएगा? मेरा मीडियन मोरलेस आपका आएगा 35 के आसपास। तो सेम थिंग आई डू हियर, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जो भी मिसिंग डेटा है उसको उसके मीडियन से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, अगर मीन लूंगा तो डिफरेंट आएगा। अब इस केस में अगर आप देखोगे मैं मीन अगर इसके लेने जाऊंगा तो आई मे हैव अ डिफरेंट डेटा। सो मैंने क्या किया, उसको शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट करके मैंने उसका मीडियन ले लिया। तो मीडियन लेके आई एम गोइंग टू यूज इट। ओके, अगर आप देखोगे आप मीन भी यूज कर सकते हो, मेरे मीन और मीडियन केस में ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, और इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप देखोगे तो डेटा आपका मोरलेस आपका नॉर्मलाइज है। तो इस केस में आपका मीन और मीडियन मोरलेस आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम आएगा। लेकिन आपका अगर डेटा नॉर्मलाइज नहीं होता देन इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर द मीडियन। ओके, इस केस में आप मीडियन और मीडियन यूज करोगे तो मोरलेस आपका डेटा मोरलेस आपका सेम आएगा। हो सकता है मीडियन में आपको हो सकता है 35 आ जाए और मीन में हो सकता है आपका 32 आ जाए, लेकिन आपका डेटा मोरलेस सेम ही आने वाला है। सर आपने ऐसे क्यों बोला? अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो यू हैव टू गो विद द मीडियन। अगर डेटा नॉर्मलाइज अगर आपका नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर आपका डेटा नॉर्मलाइज नहीं है, अगर आपका डाटा नॉर्मलाइज है इसका मतलब मीन के आसपास नहीं है, तो डाटा आपका बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ओके, अगर आपका डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे? आपका मीन है आपको हमेशा गलत वैल्यू देगा। मीन की तो एक ही वैल्यू आती है किसी भी हाँ, डेटा मीन की। की एक वैल्यू आएगी लेकिन आपको करेक्ट पिक्चर नहीं देगा वो, राइट? क्योंकि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिस आपको हाँ ये बात भी सही है, तो तो फिर आपका मीन एक की मिडिल इक्वली वैल्यू नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आपको सेंटर वैल्यू नहीं देगा। उस केस में आपको मीडियन ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जब भी आपके डेटा में अगर हम ये मान के हमने पहले भी किया था डिसाइड स्टेट की क्लास में, कि आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, तो आप आउटलायर्स का मतलब डाटा आपका मोरलेस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उस केस में मीडियन आपको अच्छा पिक्चर देता है, वैल्यू देगा। अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड आउटलायर्स नहीं है, इन दैट केस मीन आपको बेटर वैल्यू देगा। इस केस में अगर आप देखोगे तो मोरलेस आपके इसमें आउटलायर्स नहीं है, ठीक है, तो मीन आपको बेटर पिक्चर देगा। मीन यूज करो, मीडियन यूज करो, मोरलेस आपको सेम ही डाटा मिलने वाला है। ओके, हमने यहाँ पे मीडियन यूज किया, मोड भी मीन भी यूज कर सकते हो, मोरलेस आपको सेम ही मिलने वाला है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फिल यानी कर दिया एज को मीडियन से, ट्रेन में भी और टेस्ट में भी। ओके, उस बार हमने डाटा को नॉर्मलाइज करके देखा, तो इसे डाटा को प्लॉट करने के बाद तो देखो तब मोरलेस आपका यहाँ पे सारा डाटा, यानी मोरलेस डाटा उसने यहाँ पे 29 30 के आसपास मैक्सिमम डाटा उसने डाल दिया। 250 250 आर बिलोंगिंग टू एज ऑफ 30, यानी कि उसने जो आपने मीडियन लिया होगा, मीडियन भी आपका मोरलेस आपका किसके पास आया? 30 के आसपास ही आया। ये यानी मैक्सिमम डाटा उसने यहाँ मीडियन उसका 30 के आसपास रहा होगा, 30 के पास में रिप्लेस कर दिया। ओके, आपका मीन भी मोरलेस इतना ही आता। सिस्टम अगर आप आउटलायर्स देखोगे तो आपके सिस्टम में मोरलेस सिर्फ आपका एक ही आउटलायर मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज 500 और समथिंग, दैट इज फॉर फेयर। तो फेयर में आपका सिर्फ आप देखोगे तो सिर्फ आपका एक आउटलायर है, दैट इज इसका फेयर 500 से ऊपर आई मे बी ही मे बी किंग ऑफ
यूके और समवन उसका अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट होगा, आई डोंट नो। ये वही क्लास होगी सर जिसमें टी करके कुछ शुरू है। यस, टी मतलब, सो वो आपके यहाँ पे होंगे, जो कि बेसिकली आपका बहुत कम डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे टी जो आप बात करते हैं यहाँ पे टी वाला, इसमें आई थिंक ओनली वन क्लास है, दिस इज वन डेटा हियर। सो वो डेटा आपका जो कि आउटलायर है आपका टी वाला हो गया, और आपके 4 जो हम देख रहे थे, ये 4 डेटा आपका ये हो सकता है, तो आप उसका एज ए आउटलायर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसमें आउटलायर का ट्रीटमेंट लगा सकते हो, जो कि इस कोड में नहीं है, ठीक है ना। तो आप आउटलायर का ट्रीटमेंट लगा के वो उसमें से हटा के देखो, और उसके साथ करके देखो कि आपके क्लासिफिकेशन में कितना डिफरेंस पड़ रहा है। Okay, so this is one of the thing that exercise you have to do today. That first आपको मीडियन को मीन से रिप्लेस करके चेक करना है कि कितना डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया था, यहाँ पे आप जो वैल्यू थी न्यू केबिन वाली, जिसमें हमने इसको n मान लिया था 687, हमने नई क्लास बनाई थी n। आप एक काम ये करके देखना कि जितनी इनकी फ्रीक्वेंसी 15, 47, 59, उस रेशो में 687 को डिवाइड कर देना A B C D E F G और T में। Okay, that you can do. So second thing that you have to do, okay, so that is 2 exercises for you. Okay, फिर आपको आउटलायर मूव करके देखना है कितना फर्क पड़ रहा है। उसको फिर हम एम्बार्क पे जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो 644 ने एस से किया है, सी ने 168 से, क्यू और क्यू ब्लैक से 77 ने। अब आपके 2 डाटा सिर्फ मिसिंग है, तो उस दो डाटा मिसिंग के हिसाब से हम मान के चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सिर्फ 2 ही आदमी है, तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहता है कि आप उन्होंने साउथहैम्पटन से अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, तो दोनों को हमने उसको एस से रिप्लेस कर दिया। ओके, दोनों को जो भी 2 वैल्यू मिसिंग थी एम्बार्क में, दोनों को हमने साउथहैम्पटन से उसको रिप्लेस कर दिया। इसमें आप डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करके देख सकते हो, एक को सी एक को क्यू डाल के देखो, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इनका वैल्यू ऐसा होनी चाहिए, तो हमने इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा डाटा भी नहीं है। ओके, और सिर्फ 2 वैल्यू आपको क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा डिफरेंस भी डालने वाली नहीं है, तो ज्यादा फर्क इससे पड़ेगा नहीं। ओके, अगेन थर्ड फीचर आपका सिबलिंग कितने ट्रेवल कर रहे हैं आपके साथ, आपके पेरेंट्स है कि नहीं है। तो उस केस में हमने उसको एक नई फीचर्स बना दी फैमिली मेंबर, कि आपके फैमिली मेंबर्स ट्रेवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में हमने क्या किया कि नई बनाई। ओके, where it is, हमने एक नई फैमिली करके फीचर बना दिया, जो बेसिकली इसमें सिबलिंग्स और पेरेंट्स दोनों की वैल्यू हमने ऐड कर दी। तो हमने सिबलिंग्स को और पेरेंट्स को हटा के 2 कॉलम्स हटा के सिर्फ नया कॉलम लगा दिया, जो कि फैमिली की, बेसिकली आपकी फैमिली के कितने लोग आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। क्योंकि सिबलिंग हो या पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डिफरेंस करेगा नहीं, हो भी सकता है ये आपको चेक करके देखना पड़ेगा अपने कोड में, कि हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो जिसके पेरेंट्स ट्रेवल कर रहे हो, तो उसने अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए हो सकता है कि ही सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ। हो सकता है कि पेरेंट्स आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, सिबलिंग इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर ना हो सकता है कि आपको पेरेंट्स सिबलिंग के लिए उसने इतना अटैचमेंट ना हो फादर को मदर को बचाने के लिए, बिकॉज दे वर ओल्ड इनफ, सो उसको बचाने के चक्कर में उसकी ज्यादा जान चलेगी। दैट इज अ डिफरेंट इशू, ठीक है ना। वो आप डिफरेंट उनको डिफरेंट बना के भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। बस एज ऑफ नाउ हमने क्या किया, इन दोनों को सिर्फ एक सिंगल बना दिया कि सिबलिंग और पेरेंट्स को मिला के हमने एक नया फीचर बना दिया इस फैमिली की, फैमिली उसकी स्ट्रगल कर रही है कि नहीं कर रही। तो हम मान के चलते हैं कि ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमने फैमिली को बचाने के लिए ही माइट हैव सैक्रिफाइस्ड। ओके, हाँ, दैट इज डिफरेंट कि उसके पेरेंट्स में ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। ओके, सो उसमें आप अलग करके भी ट्राई कर सकते हो, 2 अलग अलग फैमिली सिबलिंग और पेरेंट्स 2 अलग अलग के साथ ट्राई करके देखो, उसमें बेटर रिजल्ट आ रहा है कि एक साथ करके बेटर रिजल्ट आ रहा है। Okay, so that is kind of feature engineering that you have to do. Okay, अभी हम क्या करते हैं, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर मैक्स फैमिली आई लॉक ये वाला, ये नीचे यही ये कुछ नहीं, ये ऐसे 32 डाटा को आप एनालाइज करके देख रहे हो कि बेसिकली आपके कितने लोग हैं जो इसमें, मतलब जो मैक्सिमम फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो बेसिकली आप देखोगे दिस फैमिली यहाँ पे आ गया ना, व्हाट इज फैमिली 10, मतलब इतने सारे लोग हैं जो मतलब 10 फैमिली के साथ, मतलब मैक्सिमम मैक्स, हाँ मैक्स इज 10, तो कितनी कितनी फैमिली मैक्स 10 10। के बराबर है। और ये आई लॉक वाला फंक्शन क्या होता है, डॉट आई 2 लॉक फंक्शन मोस्ट होता है, आई लॉक होता है, एक लोकेशन होता है। आई लोकेशन का मतलब होता है बेसिकली जब भी आप यहाँ पे बनाओगे डाटा फ्रेम, तो डाटा फ्रेम में जरूरी नहीं कि आपका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट हो, ठीक है ना। ये आपकी सीरीज में 0 से स्टार्ट हो, आप चेंज कर सकते हो। तो आई लोकेशन आपको बाय डिफॉल्ट वो लोकेशन देता है जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5। लोकेशन आपको वो देता है जो आपने एक्चुअली आपने डिफरेंट क्रिएट की होती है। लेट्स से मैंने उसको लोकेशन को मैंने क्रिएट करा दिया, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ, तो मेरी एक्चुअली में लोकेशन है। और आई लोकेशन बाय डिफॉल्ट लोकेशन है जो कि मेरा पाइथन देता है मुझे,
तो दो तरह की लोकेशन मेरे पास हो अच्छा सकती है। इस केस में अगर आप देखोगे तो मेरी लोकेशन और आई लोकेशन दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डेटा देखने के लिए जाऊंगा तो डेटा आपका यहाँ पे 0 है, 0 1 2 3 4, अलग से कोई मेरी क्लास नहीं है। अगर मेरा ABCDEFGH होता तो लोकेशन मेरी ABCDEFGH होती और आई लोकेशन मेरी 0 1 2 3 4 होती। अच्छा ठीक है। Okay, so I location is your index location और location is your normal location. Okay. So अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अब मैं कैटेगोरिकल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मेल को मैंने 0 कर दिया, फीमेल को मैंने 1 कर दिया। ठीक है, डिनोट एज 0 में। ठीक है, मैंने एम्बाक को 1 कर दिया, सी को 1 कर दिया, क्यू को 0 कर दिया, डिनोट एज। अब यहाँ मैं देखो मैं इसलिए 1 हॉट एनकोडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इसकी ये लेवल एनकोडिंग है। तो आप क्या काम कर सकते हो इसमें, जब आज कोड में चेंज करोगे तो आप इसको तीनों को बेसिकली 1 हॉट एनकोडिंग में चेंज करके देखो। ठीक है, कि कोड में आपका क्लासिफिकेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है। दिस इज लेवल एनकोडिंग। ये न्यूमेरिकल डेटा वाला कोड है जो कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आई डोंट नो इट इज वर्किंग और नॉट। सो मैंने यहाँ पर किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को मैंने क्या किया, बेसिकली स्केलिंग नहीं की है। तो आपको पूरे डेटा की आपको स्केलिंग करनी है। ये कोड शायद काम कर जाएगा, ये कोड आप चला के देख लेना, दिस कोड विल वर्क फॉर यू। सो फिलहाल इस कोड में स्केलिंग नहीं की है मैंने न्यूमेरिकल डाटा की। दिस इज वन ऑफ द फीचर इंजीनियरिंग पार्ट दैट आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस कोड, तो यू हैव टू डू द फीचर इंजीनियरिंग, ये स्केलिंग ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा एज वेल। ओके, सो आपको 4 काम करने हैं। आउटलायर्स डिटेक्ट करना है फर्स्ट, दूसरा जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो जो आपका क्लासेस हैं केबिनी क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डालनी है। थर्ड, आपको जो कैटेगोरिकल डेटा है आपका उसको आपकी 1 हॉट एनकोडिंग करनी है। एंड फोर्थ वन, आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल डाटा की स्केलिंग करनी है। ओके, तो फोर्थ थिंग यू हैव टू डू। ओके, सो नाउ वी कम फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ओके, वाई टारगेट क्या है आपका, ट्रेन सर्वाइव डॉट वैल्यूज। ओके, और हम कौन कौन से फीचर्स यूज कर रहे हैं, क्लास यूज कर रहे हैं, सेक्स यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं और फेयर यूज कर रहे हैं। इसमें देखो फैमिली भी यूज नहीं की है, तो आपको इसमें एक तो फैमिली भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज फिफ्थ वन, क्या फैमिली इंक्लूड करते हो या दोनों अलग अलग कॉलम यूज करते हो। ठीक है, so just note down all the things कि आपको क्या क्या करना एक्सरसाइज है। P class, sex, age and fear we have already included. You have to include the family or you have to include sibling or the parents columns. Okay. और कौन कौन से columns आपके बचे हैं, और what other columns we have? नेम हमने हटा दिया था, P class हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग sex यूज कर रहे हैं, हम लोग age यूज कर रहे हैं। फेयर कॉलम हमने हटा दिया था क्योंकि फेयर कॉलम हमने नहीं हटाया अभी। तो फेयर कॉलम हमने क्या किया था, व्हाट वाज द फेयर कॉलम? फेयर में एक आउटलायर दिख रहा था बस, वो 500 वाला शायद। अब फेयर कॉलम हमने यूज नहीं किया है, राइट। अगर आप फेयर कॉलम का डाटा देखोगे, डेटा फेयर कॉलम का ये आपका टिकट नंबर हमने बता दिया था, लेकिन फेयर हमने अभी भी नहीं हटाया, फेयर को यूज भी नहीं कर रहे हैं। दिस इज वन मोर एक्सरसाइज फॉर यू कि फेयर पे देखो आप, क्या हम लोग फेयर पे क्या हम लोग वी कैन इंक्लूड इट इन द मॉडल। क्या फेयर हमें हेल्प करेगा, फेयर कैसे कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो फेयर में कितने आउटलायर्स हैं कि नहीं है। अगर आउटलायर्स हैं, जैसे हम देखा टी वाली क्लास के लिए आउटलायर्स हैं, तो हमने यहाँ पर उसको एक्चुअली फेयर को हमने क्यों हटा दिया है, फेयर को हमने एक्चुअली इसलिए हटा दिया कि हम ये मान के चल रहे हैं कि फेयर और आपकी जो पैसेंजर क्लास है, आपका केबिन है, वो बेसिकली मोर लेस सेम थिंग है। यानी कि अगर आपका टिकट का रेट ज्यादा होगा तो बेसिकली आप ज्यादा स्टैंडर्ड वाले केबिन में होंगे, अगर आपका फेयर कम है तो आप नॉर्मल सी या डी वाले में होंगे। तो दैट इज व्हाई वी हैव रिड्यूस्ड वन मोर, अपने एक फीचर को हमने एक्चुअली कम कर दिया जिससे आपका मॉडल कम कॉम्प्लेक्स बने। ओके, दिस इज द रीजन। लेकिन एज एक्सरसाइज यू कैन इंक्लूड बोथ द थिंग्स, यू कैन इंक्लूड पैसेंजर क्लास एज वेल एज योर फेयर। Okay, so that might give you maybe interesting output, but as of now because we think that both the things are related, तो आप एक काम करके देखो, आप करके देखो पी क्लास में, फर्स्ट पी क्लास में और आपके फेयर में कोरिलेशन कितना है। इफ दे हैव द हायर कोरिलेशन दैट मींस आप दोनों को यूज नहीं कर सकते हो। ओके, अब उसमें कोरिलेशन आपका कम आ रहा है, इसका मतलब आप दोनों को यूज कर सकते हो। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पी क्लास और फेयर दोनों का आप कोरिलेशन निकाल के देखो, अगर दोनों का ज्यादा आ रहा है इसका मतलब दोनों इंटरलेटेड है, तो फिर आप एक चीज यूज करोगे, पी क्लास यूज करोगे या फेयर यूज करोगे। सॉरी सर, बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है मल्टी कोलिनियरिटी वाला, वो तो सिर्फ लीनियर रिग्रेशन में अप्लाई होता है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम ये लॉजिस्टिक भी लीनियर का एक्सटेंशन है, तो आप उसको यहाँ पे अप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो करके देखो कि दोनों कोरिलेटेड है या नहीं है आपस में।
ओके हमने यहाँ पर फेयर भी हम लोग यूज ले रहे हैं, अच्छा फेयर हम लोग कर रहे हैं, पी क्लास भी कर रहे हैं, सेक्स भी कर रहे हैं, एज भी कर रहे हैं, हमने केबिन नहीं लिया ना। पैसेंजर क्लास इज केबिन, व्हाट इज दैट? पैसेंजर क्लास, व्हाट इज पैसेंजर क्लास? पी क्लास, पी क्लास इज दिस, हमने बस केबिन, फैमिली और बस फैमिली रह गया है। हमने केबिन छोड़ दिया, राइट? हमने केबिन जो लिया था, केबिन को हमने ड्रॉप कर दिया, हम केबिन की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? फेयर यूज कर रहे हैं। ओके सो यू हैव टू चेक आउट कि आपको केबिन यूज करना है कि आपको फेयर यूज करना है, ठीक है? क्योंकि केबिन और फेयर आर मोर और लेस रिलेटेड टर्म्स, ठीक है ना? तो आपको देखना पड़ेगा कि आप फेयर का और केबिन का एक बार देखो कोरिलेटेड है कि नहीं है। अगर कोरिलेटेड है तो आपको दोनों यूज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? इट मेक सेंस, आप सिर्फ एक यूज कर लो कोई सा भी। अगर दोनों Ajay, अलिग्न आ I रहे have one basic question, Ajay. हैं। So basically, what is the problem which we're trying to solve here? What is the purpose? वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट कि बेसिकली आपके पास एक डेटा है, ठीक है? आप मॉडल बनाओगे ऑन गिवन, उस पर आप प्रेडिक्ट करोगे। लेट से कोई मैं आपको पैसेंजर देता हूँ, ठीक है ना, लास्ट में प्रेडिक्शन के लिए कि उसकी क्लास ये है, ये है, ये है, ये है, ये सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, ये प्रेडिक्शन आपको करना है। तो उसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इवेंट ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? हाँ प्रैक्टिकल नहीं, इंप्लीमेंटेशन, but my question is कि अगर हमें survival rate पता करना है कि chances of survival कितना है, तो आपको यहीं से पता चल रहा है, राइट? but do you think all these class or fair, all these things are related to survival chances? यस, अब कोई क्लास लेट से Age I can understand could be, sex could be, but fair, how it will impact my survival rate? I'll give you an जैसे example. जैसे Let's say जितनी आप हायर क्लास होगी उतनी ही ज्यादा फैसिलिटीज इतनी ज्यादा मिलेंगी, फैसिलिटीज उसे होंगी शायद उसके से पास। बोट मिल जाए। अब लेट से आप प्रीमियम क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके पास बेसिकली अब आपके पास हो सकता है आपको दो जैकेट दे रखी हो, आपके पास और बहुत सारे तरीके दे रखे हो। दिस इज ऑल अबाउट, क्योंकि आपकी उतनी फैसिलिटी आपकी इंक्रीज होते चली जाएंगी आपके फेयर के हिसाब से, आपकी पैसेंजर क्लास के हिसाब से। जो गरीब लोग होंगे बेचारे बेसमेंट में पड़े होंगे, उनके पास हो सकता है उसमें इतने नाव भी नहीं होंगे, इतने बोट भी नहीं होंगे। सो दिस इज बिकॉज दिस इज लोअर क्लास, तो उतनी फैसिलिटी को नहीं होंगी, तो उनके सर्वाइवल चांसेस उतनी कम होते चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपके So प्रेजुडिस that's भी the assumption we are making, that there is a correlation between, say, class and survival rate, correct? यस एग्जैक्टली। और जो आपके जो लोअर क्लास के लोग हैं वो हमेशा प्रोड्यूस आपका हमेशा रहता है। लेट से आप लोअर फेयर से आते हो तो हमेशा प्रोड्यूस रहेगा कि जब बेसिकली जब अथॉरिटी ने काम किया होगा लोगों को बचाने के लिए, तो प्रोड्यूस दिमाग में रहा होगा कि पहले हमको प्रीमियम लोगों को बचाना है, उसके बाद फिर सेकंड क्लास लोगों का आएगा। सो सारी चीजें हमको बेसिकली अपने मॉडल में इंक्लूड करनी है। ओके तो आपको डेटा से मिलेगा। अगर आप प्रोड्यूस भी देखना चाहते हो तो दैट इज कमिंग फ्रॉम द डेटा ओनली, कि आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे वो डेटा इसमें है नहीं। अगर आप देखना चाहोगे तो हो सकता है पैसेंजर क्लास के लोग, या अगर आप डेटा निकाल के देखो ऊपर जो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं की है। नहीं, तो वही बोल रहा हूँ कि that is why question, exact question is that instead of like assuming in a practical this thing, do we make these kind of validations? Yes. Like if we do a plotting or something like जैसे हमने यहाँ between पे प्लॉटिंग की है, class and survival, okay? जैसे हमने यहाँ पे आपके मेल और फीमेल को लेकर हमने सर्वाइवल क्लास को किया है, ऐसे एट द सेम चीज आप यहाँ पर उसको पी क्लास को लेकर भी कर सकते हो कि कौन कौन सी क्लास है, कौन कौन सी लेब सर्वाइव की है। तो आपको क्लियर पिक्चर आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी क्लास आपका हायर क्लास सर्वाइव हुई कि नहीं हुई है, तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा वो। ओके जैसे हमने यहाँ पे किया है ट्रेन डॉट ग्रुप बाय सेक्स और सर्वाइव साइज अनस्टैक, सेम यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप पी क्लास ले लो, सर्वाइव ले लो और उसको अनस्टैक करके देखो कि आपको मिल जाएगा वो कहाँ कहाँ कितने कितने लोग सर्वाइव किए। ओके सो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी यहाँ से मिल जाएगी आपको। So there are a lot of new commands which we never tried and struggled, like unique, group by, Yes. makes life very easy because you can correlate data very easily visually, because here you can clearly see that between, say, male and female, there is 80-20 ratio basically. So there is a very high correlation that yes, survival rate for male is much higher, for example. So I think, yeah, so I think that's very useful. Actually, we were struggling to get these kind of data commands. अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो हमने पाइवट टेबल बनाई है। दिस इज द सेम थिंग, पाइवट टेबल ही बना सकते हो, शायद आपने नहीं किया होगा। पाइवट टेबल में आपने क्या किया, सेक्स और सर्वाइवल और एग्रीगेट फंक्शन ले लिया आपने, मीन के हिसाब से वो उसको पाइवट टेबल पे बना रहा। बट आपको नहीं लगता पीयूष, मतलब अब हम इससे पहले जो हमने डेटा देखे हैं
जैसे बुक हाँ वाला देखा या कुछ देखा, मतलब वहां पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं कि हम कुछ चीज ग्रुप बाय करके कुछ कंपेयर करें। यहाँ पे तो कुछ भी फिर भी सर्वाइवल रेट एक चीज है जिसको हम कर सकते हैं कि ठीक है कैसे किया, बट बाकी सारा जैसे बुक्स का डेटा या हाउस का डेटा है उसमें हम क्या ही इस तरह का ग्रुप करते हैं कुछ। नहीं हम देख सकते थे ना कि जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस निकाल रहे थे हम, तो से ऑथर टू प्राइस रिलेशनशिप, पेपरबैक category to price relationship, basically that gives you idea of which category is really influencing your price. Yes, right. आप ग्रुप बाय करके आपको आइडिया मिल जाता है बेसिकली ऑन एन एवरेज आपका जो बेसिकली आपके लेट्स से आपके पास कोई कैटेगरी का वैल्यूज है तो कैटेगोरिकल आपकी ये कैटेगरी बेसिकली आपको आउटपुट कैसे डिफाइन कर दिया किस कैटेगरी के लिए प्राइसेस ज्यादा है किस कैटेगरी के प्राइसेस कम है तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेट्स से आपका पेपर बैग है आपकी बुक तो पेपर बैग का आप देखोगे पेपर बैग और आपका नो पेपर बैग तो पेपर बैग का प्राइस आपको कम मिलेगा नो पेपर बैग का आपको ज्यादा मिलेगा। आपका ग्रुप बाय से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि पेपर बैग का आप देखोगे तो प्राइस आपकी हायर साइड पे है उसका मीन आप निकाल लो और नॉन पेपर का मीन निकालो प्राइस का तो आप देखो नॉन पेपर मीन जिसका कि सॉलिड पेपर सॉलिड बैग होता है मतलब नॉन पेपर बैग उसका प्राइस आपको ज्यादा मिलेगा तो आपको आइडिया मिल जाता है उससे। Yeah, that like if you have these commands and you can slice and dice data, you can get a lot of meaningful insight actually. So I can give you this thing. I think that is missing with you. आपके साथ शेयर नहीं हुआ शायद. This is Python for ML. Okay. इसमें आप देखोगे तो इसमें एंड टू एंड सारी कमांड मैं नहीं कहता सारी कमांड्स हैं इसमें लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी डिस्कस इन इट ठीक है ना। पाइथन ये आपके इसमें फिर आपके यहाँ से आपका स्ट्रिंग से स्टार्ट हो जाता है देन आपको इसमें करके देख लेना फिर लिस्ट है देन इट इज यू हैव डिक्शनरी देन यू हैव import command कैसे काम करती है then you have lambda function then you have arrays then you have what is So this is basically a capsule of commands. this is an panda series object कैसे काम करता है series object कैसे काम करता है then you series as a dictionary कैसे काम करती है फिर आपका डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट पे क्या क्या कमांड होते हैं फिर आपकी डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाओगे कैसे इंडेक्सिंग और सिलेक्शन कैसे होगा जिसमें आई लोकेशन वाली बात अभी कर रहे थे लोक और आई लॉक कैसे काम करता है फिर डाटा सिलेक्शन डाटा फ्रेम में कैसे करता है इसमें बहुत सारी कमांड्स जो अभी देख रहे थे आपकी ठीक है ना इसमें आपको सब मिल जाएगा इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें कैसे काम करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं ठीक है ना। बट सर पता है क्या होता है कई बार हम ऐसे पढ़ते तो हैं कमांड्स बट जब तक हम उसको अप्लाई करके नहीं देखते ना तब तक कोरिलेट नहीं होता। जैसे तुम्हें आज ग्रुप बाय ये वाली देखा मैं है ना आपको ये मैं याद आपको शेयर रहता कर है। दूंगा ठीक है ना शेयर में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं उस एग्जांपल्स को आप मतलब आपस में खुद से भी यूज करके उसको मतलब ट्राई ऑन टेस्ट करके आप उसको यूज करके देख सकते हो जिसकी नंबर को कैसे हैंडल करना है उसके ये इसका एग्जांपल रजनीश की उसमें पड़ा हुआ है क्या नहीं गिटहब में? नहीं ये रनीश कुछ में नहीं ये मेरी स्लाइड में आई विल शेयर विद यू ठीक है ना। ओके और आपका ये है आपका बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें जॉइंस कैसे करोगे मैन टू वन जॉइंस भी हैं इसमें और देन यू हैव आल्सो हैव द थिंग्स एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग जो अब ग्रुप बाय की हम बात करें तो एग्रीगेशन की बात कर रहे थे वो सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे डेटा आपके पास शायद नहीं होगा तो नेट से डाउनलोड कर लेना मैं आपको भेज दूंगा मोबाइल में डेटा उसमें यूज हुए ग्रुप बाय कमांड्स आपको कैसे यूज होती है उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके लैम्डा फंक्शन कैसे यूज होता है उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपने ऑलरेडी किया भी होगा शायद वो लैम्डा तो यूज किया है तो ग्रुप बाय कमांड के एग्जांपल आपको सारे मिल जाएंगे कैसे ग्रुप बाय कमांड यूज होता है सॉर्टिंग कैसे करते हैं उसका कमांड आपको मिल जाएगा। हमने बिल्कुल नहीं किया सॉर्टिंग ग्रुप बाय मतलब जो भी थोड़ा रीनेम कैसे करते हैं कॉलम को उसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा और इसमें से खाली हमने एक लैम्डा यूज किया हुआ लग रहा है मुझे तो आप इसमें एक काम करना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें भी हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें भी है भी नहीं मैं आई वाज जस्ट पुटिंग द थिंग्स हियर ठीक है तो अभी भी कंप्लीट नहीं है ठीक है। सो आई विल डू वन थिंग मैं जो आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ इसको आज actually we can all contribute to make it fuller. We can all right. add. सो आई विल शेयर इट विद यू गाइस ठीक है ना। तो इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें हैं इसमें लेकिन बाकी चीजें थोड़ी सी मिसिंग है लास्ट में आई वाज मेकिंग इट कंप्लीट वन। सो इसमें मेजॉरिटी 70-80% जो कमांड जनरली यूज होती है वो इसमें है ठीक है ना जो आपको डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं डेटा फ्रेम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट आपके एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं आपके ग्रुप बाय फंक्शंस आपके बहुत सारी चेंज होती हैं वो सारे इसमें आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा उसके बाद फिर इंटरनेट हो जाएगा आप चीज़ों को देखना चाहो डिटेल में तो आप देख सकते हो लेकिन मोरलेस कमांड इसमें आपकी आ गई है
आप इसमें चार्टिंग वाली कमांड्स आपकी नहीं, जो आप ग्राफ बनाते हो ग्राफ वाली कमांड्स इसमें नहीं है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट बाकी सारी कमांड्स इसमें है, कुछ कमांड्स हो सकते हैं मिसिंग हो। सो आई विल गेट इट डन इन नेक्स्ट वीक और समथिंग। तो नेक्स्ट वीक में आपको कंप्लीट शेयर कर दूंगा, पर फिलहाल मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको काफी सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। किसी को पाइथन का इंटरव्यू क्रैक करना हो तो ये कुंजी है। हाँ मोल है। और मैं बेसिकली आपको बहुत सारी मैं आपको वो भेज दूंगा, क्या कहते हैं उसको, जो उसको क्या बोलते हैं, रेडिट, मतलब इवन आई उसका नाम भूल रेडी गया। रखना। हाँ मतलब शॉर्ट होता है, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाती है। इवन बोलते क्या है, मैंने कभी यूज नहीं किया उसको। रिसर्च पेपर, नो नो, दिस चीट शीट, चीट शीट। ये मैथ्स की चीट शीट्स हैं सारी, है मैथ्स की चीट शीट्स आपको भेज दूंगा। इनफैक्ट फिर ऐसे ही आपकी पाइथन की भी चीट शीट्स हैं, पता नहीं कहाँ पड़ी हैं, ढूंढनी पड़ेंगी मुझे। तो पाइथन कमांड की भी चीट शीट्स हैं बहुत सारी, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली आप कुछ भी ढूंढना तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चीट शीट्स आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो आई डोंट नो चीट शीट्स कहाँ पड़ी हैं पाइथन की, दैट आई हैव टू फाइंड इट आउट। चलो भेज के आज भेज दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। सो लेट्स गो टू द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, सो फिलहाल इसमें एग्जांपल में हम लोग क्या यूज करें, पी क्लास, सेक्स, एज और फेयर। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको बेसिकली आपको केबिन यूज करना है कि नहीं करना है। केबिन आप यूज करके देखो दोनों का अलग अलग। पहले उससे पहले आप कोरिलेशन देख लेना कि फिर उसमें कोरिलेशन है कि नहीं है। कोरिलेशन है सिर्फ एक यूज कर लेना कोई भी, ओके। फिर सिंपल चीज, आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन बना रहे हो, एक्स फीचर्स 1 मॉडल पर आपने फिट कर दिया, एक्स फीचर्स पे वाई टारगेट आपने कर दिया, मॉडल को आपने कर दिया। आपके 1 2 3 4 फीचर्स, तो 4 आपके कोफिशिएंट्स आएंगे, आपको कोफिशिएंट्स मिल गए। आपको इंटरसेप्ट इसमें निकाला नहीं है, इंटरसेप्ट आप अलग से निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है आज में। If I look at the coefficient, so basically P class is at -1 and fair is 1 plus 1.55. So will it give me any indication? यस, आपके पी क्लास मतलब पैसेंजर क्लास जो है आपका बेसिकली आपका नेगेटिव इंप्रेशन है। बेसिकली पैसेंजर क्लास अगर आपका बेसिकली आई डोंट नो, पैसेंजर क्लास अगर आपका हायर साइड है पी 1 2 3, अगर आपका अगर हायर मतलब 1 2 3 4 5 के हिसाब से होगा बेसिकली यहाँ पे, तो 1 को प्रीमियम मान के चल रहे हैं, तो 5 अगर ज्यादा है तो 5 को माइनस कर रहे हैं उस हिसाब से। बेसिकली अगर आपकी वो पैसेंजर क्लास आपकी 5 अगर 10 11 12 13 है, इसका मतलब आपके बचने के चांसेस कम है। अगर आपकी 1 2 3 है तो बचने के चांसेस ज्यादा है। इस तरीके से है बेसिकली। Okay. So basically because the data is in reverse proportion, it is showing negative correlation. ऐसा आपका सेक्स ज्यादा का 2.5 है बेसिकली। सेक्स में आपका 2.5 आ रहा है कि सेक्स आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेसिकली। और आपका एज जो है बेसिकली आपका नेगेटिव फैक्टर, आपकी एज ज्यादा है तो नेगेटिव है। फेयर आपका पॉजिटिव, फेयर आपका ज्यादा है, बचने के चांसेस ज्यादा है, आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका लॉजिस्टिक मॉडल क्लास आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपकी क्लास कौन कौन सी है, 0 एंड 1। आपके पास दो क्लासेस हैं लॉजिस्टिक मॉडल में, 0 एंड 1। फर्स्ट जो आपका कॉलम आएगा वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 आपका सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं यहाँ से निकाल के देखूं, ये मैंने इसका क्या बना दिया, मॉडल को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, एक्स को एक्स पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने इसका क्या बना दिया, ये बना दिया, क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज दिस, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसको मैं अगर मैं चला के देखूं शुरू से लेके अभी तक, अभी चलेगा नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज में चलाई नहीं है मैंने। लेट्स को यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सबको चला देता हूँ। कहाँ से रन होता है, सेल रन ऑल लेवल, हो गई क्या, आई एम नॉट श्योर, हो गई। ये आपकी क्लासेस आ गई। यहाँ पे मैं इसको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, उसका प्रेडिक्शन में आपका ये बन के आ गया है। अगर मैं इसका प्रेडिक्शन देखूँ, इसका इसने क्या प्रेडिक्शन किया है, वाई प्रेडिक्शन इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इज वाई प्रेडिक्शन, यही तो है सर। एस भी है उसमें, अच्छा PREDS। ओके, S मिसिंग है। तो इसने प्रेडिक्शन किया आपका 0 1 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है ना। इसका प्रेडिक्शन है क्योंकि ये बेसिकली 0.5 थ्रेशोल्ड के हिसाब से आपको प्रेडिक्शन दे रहा है, ठीक है। अगर नहीं पर मैं इसकी वाई प्रेडिक्शन मैंने निकाला है, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने मॉडल क्लासेस निकाली है, पे मैं इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं, दैट इज योर
ये भी सिर्फ क्लास निकाल के देता है। ये आगे हम आगे देखेंगे। अगर मैं सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूँ कैसे देख सकता हूँ। ये तो इसने सिर्फ क्या किया, आपको मैंने से प्रेडिक्शन करा दिया, उसने प्रेडिक्शन के हिसाब से मुझे प्रेडिक्शन दे दिया कि 011। अगर इसमें लॉग लॉस देखो मैं, लॉग लॉस कितना आया है इसका, तो लॉग व्हाट इज लॉग लॉस, देन अगेन लॉग लॉस वाई प्रेडिक्स है ये PRDS। आपका लॉग लॉस आ रहा है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, is not y true. Positional argument follows keyword argument. Positional argument keys follows keyword, तो keyword के बाद आएगा, ऐसा होता कुछ। vibrates. एक मिनट, let me check it. Log loss. What is log loss? जब जो लॉस ना होते हैं यहाँ पे लॉग लॉस होता है, that is log loss. Log loss is y true, y pred. This is an example. कहाँ गया? No example. Y true, y pred. Y pred is equal to y pred. Okay. अरे जा यार। log loss is not defined. तो log loss के लिए क्या होता है आपका, what do we need for log loss? लाइब्रेरी कॉल नहीं करी होगी। sklearn metric. Let's go to user guide. तो आपका लॉस आ रहा है 7.057। जो आपका लॉस मतलब अभी सिस्टम अभी इतनी एरर है, इतना लॉग लॉस है आपका। ओके अगर मैं इसकी एक्यूरेसी निकालना चाहूँ तो दिस इज योर मॉडल एक्यूरेसी स्कोर होता है ये। व्हाट इज एक्यूरेसी स्कोर मेट्रिक, लेट्स गो बैक। आई थिंक स्कोर एक्यूरेसी स्कोर से बोथ आर सेम थिंग। ये भी आपको यही चीज बताता है आई थिंक, और जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो भी सेम चीज आपको यही बताएगा। बोथ आर द सेम थिंग। accuracy score, y true and y product. यहाँ से आपको एक्यूरेसी मिल जाती है, दैट इज 0.79। यहाँ से भी आपको ये एक्यूरेसी स्कोर मिलेगा। आई थिंक दैट शुड बी सेम, एग्जैक्टली सेम है, राइट। दिस इज एक्यूरेसी स्कोर। ये आपका एक्यूरेसी स्कोर है कि बेसिकली कितना पॉजिटिव को पॉजिटिव बता रहा है, नेगेटिव नेगेटिव बता रहा है, जो हमने एक्यूरेसी स्कोर देखा था। दिस इज सेम थिंग। ओके अब हम इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। दिस इज योर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसमें दिस फर्स्ट वन इज योर C00 यानी कि ट्रू नेगेटिव, दिस इज योर C10 योर फॉल्स नेगेटिव, दिस इज योर ट्रू पॉजिटिव, दिस इज योर ट्रू पॉजिटिव। तो इस केस में अगर आप देखोगे ट्रू पॉजिटिव होगा ना, ये उल्टा बनाता है एक्चुअली में। ट्रू पॉजिटिव फर्स्ट आपका ट्रू नेगेटिव है, ये ट्रू नेगेटिव है दिस थिंग, ठीक है। दिस इज योर फॉल्स नेगेटिव C10, नहीं C10 क्या है आपका, वेरी C10, दिस वन फॉल्स नेगेटिव, okay, and this one is your true positive and this is your no, this is true positive, this is false positive. Yes, okay, true no true negative, and this is your C0 and C01 is your false positive, this one, then false negative, and this is your C1, this is true positive. Yes,
तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, अगर मैं आपके फॉल्स पॉजिटिव देखो तो फॉल्स पॉजिटिव आपके आ रहे हैं C01, यानी 80 लोग जो आपके बेसिकली सरवाइव नहीं हुए थे उनको भी सरवाइव दिखा रहा है। पहली चीज तो ये। और व्हाट इज योर फॉल्स नेगेटिव? फॉल्स नेगेटिव इज योर्स 102, यानी कि जो बेसिकली आपके हुए थे उनको डेड दिखा रहा है, उनको डेड दिखा रहा है। सो आपके सिस्टम में भी इतनी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, यानी आपका मॉडल अभी 0.79% एक्यूरेसी पे काम कर रहा है, आपका लॉजिस्टिक मॉडल जो हमने सिर्फ 4 पैरामीटर यूज किए हैं, ठीक है। ओके, इसमें इसका प्रिसीजन स्कोर अगर निकाल के देखें तो हमें क्या देता है 0.75। रिकॉल स्कोर कितना है 0.701। ओके, अब हमारे पास ये केस आता है, लेट्स हम इसी केस को मान के चलते हैं। ऐसे आप यहाँ पे ये सारी चीज एक साथ भी निकाल सकते हो। अब इसमें क्या आ गया, y true y pred इक्वल टू, इसने ये कैसे निकाला कि ये एक्चुअली में फॉल्स पॉजिटिव है और ये फॉल्स नेगेटिव है? हमने दिया ना उसको डेटा, हमने उसको बताया कि एक्चुअल क्लास कौन सी थी, हमने उसको स्टार्टिंग बताया ना कि पॉजिटिव क्लास कौन सी, नेगेटिव क्लास कौन सी है, तो उसके हिसाब से फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव बना लेता है ना। नहीं मतलब मींस कि व्हिच रो इज एक्चुअली फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव। ये एक्चुअली आप ये देखोगे ना, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर आप इसका साइकिट लर्न में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब ये ग्राफ बनाता है ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो फर्स्ट रो इज C00, देन C10, देन C11, देन C101। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड नोट्स इसमें है कि नहीं है। तो एक्चुअली इसके आपको माय क्वेश्चन इज कि अगर मेरा मॉडल नहीं डिटेक्ट सही से डिटेक्ट कर पा रहा है तो हाउ दिस इज एबल टू डिटेक्ट कि हमने गलत डिटेक्शन किया है? गलत डिटेक्शन किया मतलब ये तो एक्चुअल से कंपेयर कर लेगा ना आपका। ये क्या करेगा, आप ये अब मैं मेरे मॉडल बना के तैयार कर लिया, मॉडल के ऊपर मैंने प्रेडिक्शन किया है ये, ठीक है ना। मेरा जो ट्रेनिंग डाटा था, ट्रेनिंग डाटा के ऊपर मैंने प्रेडिक्शन कर दिया। अगर आप देखोगे मैंने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही मैंने प्रेडिक्शन कर दिया। यहाँ पे जो मैंने प्रेडिक्शन मैंने किया है वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही किया है। लॉजिस्टिक मॉडल में प्रेडिक्ट किया, देखो एक्स फीचर्स के ऊपर ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया जो एक्चुअल था, और उसी ऊपर मैंने प्रेडिक्शन मार दिया, तो बस एक्चुअल भी आ गया और प्रेडिक्शन भी आ गया। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली। ओके, जो बस पहले तो मैंने ट्रेनिंग डाटा के ऊपर मैंने मॉडल बनाया और फिर उसी मॉडल से ट्रेनिंग डाटा में प्रेडिक्शन कर दिया मैंने, ये किया है मैंने। अंडरस्टूड पीयूष? या ओके, सो इस वजह से मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स मुझे बन के आ गया है। ओके, ये मैंने किस पे किया बेसिकली, आपका अगर देखो मैंने एक्स पे किया है, लेकिन मैं इसको टेस्ट भी कर सकता हूँ। वैसे मैंने क्या किया, मैंने जिस पे कर रहा हूँ उसी पे किया, मैंने टेस्ट पे नहीं किया शायद। ये एक्स फीचर्स 1 और मैं प्रिडिक्ट भी एक्स फीचर्स 1 पे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ मैं इसको टेस्ट पे नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको टेस्ट पे भी कर सकते हो। पहली चीज यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रेन इस एक्स फीचर्स 1 पे मैंने मॉडल को ट्रेन किया, आप देखोगे मॉडल डॉट फिट। उसके बाद प्रिडिक्शन भी किस पे कर रहा हूँ, एक्स फीचर्स 1 पे कर रहा हूँ। सो आपको क्या करना है, आपको करके देखना है बेसिकली, मैं ट्रेनिंग पे आप ट्रेन करो और टेस्टिंग पे आप इसके प्रिडिक्शन करके देखो, ठीक है ना, और फिर कंपैरिजन करो। अंडरस्टूड द माय पॉइंट? दिस इज योर 7th एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू। फिर उसके बाद फिर आप देखोगे फिर आपका स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ट्रेनिंग और क्योंकि ट्रेनिंग पे मैंने ट्रेन किया और ट्रेन पे मैं स्कोर निकाला तो हो सकता है कि मेरा मॉडल ओवरफिट हो सकता है टेस्ट में स्कोर, जो मेरा टेस्ट में स्कोर अभी ट्रेनिंग में 0.79 आ रहा हो रहा है, हो सकता है टेस्ट मेरा ऑल कम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? क्योंकि ये स्कोर मेरा बेसिकली आ रहा है आपका, दिस स्कोर इज कमिंग फॉर एक्स फीचर्स 1 ट्रेन पे निकाला मैंने, और एक्स फीचर्स 1 मेरा ये भी है, ये मेरा ट्रेन वाला ही है, ठीक है। उसी में मैंने मॉडल बनाया। तो अब इसको टेस्ट पे करके देखो, टेस्ट मेरा स्कोर कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। अंडरस्टूड? तो ये मेरा स्कोर बन के आ गया। उसके बाद मैंने ये सब मेरा जो सारा काम मेरा हो रहा है सब मेरा ट्रेन पे चल रहा है। उसके बाद आपको यही सेम एक्सरसाइज आपको टेस्ट पे करनी है। फिर टेस्ट पे देखो आपका स्कोर कम या ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपका स्कोर उस पर और भी कम आ रहा है टेस्ट, इसका मतलब आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है। ओके, बाय डिफॉल्ट जो आपका ये होता है लॉजिस्टिक मॉडल, या बाय डिफॉल्ट आपका रेगुलेशन अप्लाई कर देता है L2। ओके, अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आप यहाँ पे खोल के देखोगे तो बाय डिफॉल्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका रेगुलेशन अप्लाई कर देता है L2। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है तो आप इस मॉडल को L2 में साथ करके इसकी बेसिकली आप रेगुलेशन की आप
कॉस्ट बढ़ा सकते हो, कितना ज्यादा रेगुलाइज आपको करना है। L2 तो ऑलरेडी अप्लाई कर ही रहा है, लेकिन कितना ज्यादा उसको एक्सट्रीम अप्लाई करना है वो जाके आप यहाँ पे कर सकते हो। लेट्स से ये 5 स्टार चेयर यहाँ पर होगा नहीं, देन तो यहाँ पे देखोगे बाय डिफॉल्ट ये L2 यूज करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सी यूज कर सकते हो कि बेसिकली व्हाट इज द रैंक लेंथ स्ट्रेंथ ऑफ द रेगुलेशन। अगर आपको लगता है कि आपने L2 अप्लाई किया लेकिन तभी भी ओवरफिट कर रहा है, तो उस केस में सी आप बढ़ा घटा के देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1 होता है, इसको आप ज्यादा करोगे, ठीक है, इनवर्स ऑफ द रेगुलेशन स्ट्रेंथ, आप इसको कम करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ज्यादा करोगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ओके, सो यू कैन ट्राई इसकी आप स्ट्रेंथ बढ़ा के कम ऊपर नीचे करके कि आपका कहाँ पे आपका बेटर रिजल्ट आपको ये दे रहा है। ओके, दिस इज योर 8th एक्सरसाइज फॉर द रेगुलेशन टेक्निक। ओके, सब नोट डाउन करते रहो। ओके, यहाँ तक सब कुछ ठीक था, यहाँ तक देख लिया। उसके बाद हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, आप क्लासिफिकेशन Anybody noted down all 8 exercises? I am missing few. क्या? Has anybody noted down all 8? नेहा, क्या आपने नोट डाउन किया है? नेहा, आर यू देयर? हाँ जी, हाँ हाँ, आपने नोट डाउन किए हैं सारे 8 पॉइंट जो आपको करने हैं? मैंने 1 2 3 4 5 6 तो किए, लास्ट के भी जो 2 आपने बोले वो नोट नहीं किए। So can we repeat so that everybody can note down? मैंने ग्रुप पे किया, एक तो आउटलायर का बोला था, एक वन हॉट एनकोडिंग, एक स्केलिंग, एक जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, और एक वो बोल रहे थे कि ये जो कॉलम्स है ना उसमें फैमिली एक बार ऐड करके देखना, फिर एक फेयर के कॉलम का बोल रहे थे कि फेयर और केबिन में देखना कोई कोरिलेशन है या दोनों ऐड करना है। उसके बाद अभी जो लास्ट के 2 बोले वो मेरे मिस हो लास्ट का गए। मैंने ये बोला है आपको कि जो बाय डिफॉल्ट आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, बाय डिफॉल्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है आपका, बेसिकली आपका रेगुलाइज कर देता है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि बेसिकली पहला काम तो है कि मैंने यहाँ पे जो मैं आपका जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं एक्स पे ही कर रहा हूँ, यानी ट्रेनिंग डाटा पे फिर से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और उसके बेसिस में स्कोर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि बेसिकली प्रेडिक्शन आपको करना है टेस्ट पे, और टेस्ट के हिसाब से फिर आप स्कोर निकालो। अंडरस्टूड? समझ में आया? अभी मैं ट्रेनिंग पे मैंने मॉडल को ट्रेन किया, ट्रेनिंग के ऊपर ही मैं उसको प्रोडक्शन कर रहा हूँ। आपको यहाँ ट्रेनिंग पे ना करके टेस्ट पे इसको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। और टेस्ट के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिर आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा, उसके हिसाब से फिर आपका स्कोर आएगा। ओके, उसके हिसाब से यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। ओके ओके, उसके बाद फिर आप देखोगे आपका मॉडल कहीं ओवरफिट तो नहीं कर रहा है, ये ट्रेनिंग पे क्या डेटा दे रहा है, स्कोर आ रहा है, और टेस्टिंग पे क्या स्कोर आ रहा है। अगर आपका स्कोर कम हो रहा है इसका मतलब आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है। तो पहले एक्सरसाइज तो ये है कि आपको ये मॉडल जो आप देखा है मैंने यहाँ पे, जो मैंने प्रेडिक्शन करना है आपको टेस्ट पे करनी है, फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड पे दोनों का स्कोर कंपेयर करना है, फिर देखो कहीं आपका मॉडल ओवरफिट तो नहीं कर रहा है, यानी स्कोर आपका कम तो नहीं हो रहा है। अगर आपका स्कोर कम हो रहा है देन यू हैव टू गो बैक, और जो आपने जो बाय डिफॉल्ट जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो आपका रेगुलेशन लगता है, ठीक है, वो जो लगता है आपका बेसिकली दैट, उसमें आपको ये कैसे हटेगा यहाँ से यार, हाँ, उसमें आपको रेगुलेशन की आपको स्ट्रेंथ कम या ज्यादा करके देखनी है। दिस पैरामीटर यू हैव टू चेंज सी। ओके, उससे करके उसको आप चेंज करके देखो, ऊपर नीचे बढ़ा के, एक से ऊपर या एक से कम करके, डिफॉल्ट आपके 1.0 होते, फिर देखो आपका स्कोर कैसे कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपको रेगुलेशन की स्ट्रेंथ को आपको कम या ज्यादा करता है। ओके, दिस इज द 8th एक्सरसाइज। ओके, यहाँ तक सब ठीक है? लेट्स गो। ओके, ये आपका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट होती है जो आपको बताता है प्रिसिजन रिकॉल आपका क्या आ रहा है। 0 के लिए आपका प्रिसिजन इतना आ रहा है, रिकॉल इतना आ रहा है, F1 स्कोर इतना आ रहा है, सपोर्ट का मतलब कितने टोटल सपोर्ट को बोल जाओ, दिस इज यूजलेस। ऐसे ही 1 के लिए। अब यहाँ पे एक चीज आपको फिर से एक चीज करनी है। अब आपको क्या करना है बेसिकली, आप यहाँ पे देखोगे तो आप इस, अगर मैं इस एग्जाम्पल के लूँ, इस बिजनेस लॉजिक को अगर मैं लेके चलूँ, सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, आपके लिए यस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके सर्वाइव थे उसको नॉन सर्वाइव दिखा, ये जो नॉन सर्वाइव थे उसको सर्वाइव दिखा। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है? जो नॉन सर्वाइव थे उनको सर्वाइव नहीं दिखाना चाहिए। जो नॉन सर्वाइव थे उसको सर्वाइव नहीं दिखाना चाहिए। ओके, एनी अदर आइडिया? नहीं, यही है।
ओके, जो नॉन सर्वाइव जो तो उसको सर्वाइव सर्वाइव को नहीं नॉन दिखाना। सर्वाइव नहीं वो दिखाना सर चाहिए। डिपेंड करता है, सर डिपेंड करता है ये जाना कहाँ पे। अगर मीडिया के पास जाना तो वो तो नॉन सर्वाइव को भी सर्वाइव दिखा देंगे कम रेट दिखाने के। देख, मैं बेसिकली एक्सरसाइज में किस लिए कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि लेट्स से कि अगर टाइटैनिक जहाज मेरा सिंक हो गया तो अगर मैं आगे भी कुछ सेफ्टी मेजर्स लूंगा तो बेसिकली मुझे उसको ध्यान में रखते हुए सेफ्टी मेजर्स मुझको लेने हैं, ठीक है। अगर मैं नॉन सर्वाइव को सर्वाइव दिखाऊंगा तो बेसिकली वो जो मेरी शॉर्टकमिंग थी वो मेरी छिप जाएंगी, बेसिकली मैं उसको अकाउंट में नहीं लूंगा, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी कि जो नॉन सर्वाइव था उसको सर्वाइव नहीं दिखाना चाहिए, वो सेफ्टी मेजर्स में उसके हिसाब से नहीं ले पाऊंगा। ओके, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो उस केस में व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, मुझे प्रिसाइज, मुझे प्रिसीजन हायर साइड पे चाहिए, मुझे रिकॉल हायर साइड पे चाहिए, हमने क्योंकि केस क्या डिफाइन किया, उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट अभी इज तो पॉजिटिव। केस आपने एग्जैक्टली बताया तो सही मुझे कि नॉन सर्वाइव को नहीं सर्वाइव नहीं नहीं दिखाना है, और आपका नहीं नहीं, सर्वाइव हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मतलब हम उसको पॉजिटिव किसको मान रहे हैं और नेगेटिव किसको मान पॉजिटिव रहे हैं। सर्वाइव को मान रहे हो, ऊपर देखा था ना, सर्वाइवल इज पॉजिटिव। सर्वाइवल इज पॉजिटिव मतलब तो ये उल्टा कर रहा है ना, नहीं ये बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, मतलब फॉल्स पॉजिटिव मतलब नहीं बचा और दिखा रहे हैं कि बच गया। क्योंकि सर्वाइवल इज पॉजिटिव, यानी सर्वाइवल है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं, नॉट फॉल्स पॉजिटिव। हाँ, सर्वाइव फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या था, होता है कि वो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव दिखा रहा है, राइट। आपको फॉल्स पॉजिटिव को क्या करना है, कम करना है, बढ़ाना है। 0 को 1 नहीं दिखाना चाहिए नहीं ना। फॉल्स पॉजिटिव को कम करना है, राइट हाँ, राइट। तो फॉल्स पॉजिटिव कम होगा तो प्रिसिजन, तो फॉल्स पॉजिटिव कहाँ पे यूज होता है, प्रिसिशन में होता है, ट्रू प्रिसीजन में पॉजिटिव अपॉन ट्रू तो यानी कि पॉजिटिव। प्रिसीजन आपको क्या करना प्रिसिशन है, हाई करना है। बढ़ा किसके लिए, बढ़ाना आपको है। 1 के, तो आपको प्रिसीजन हाई करना है 1 के लिए, ठीक है। तो आपको एक्चुअली प्रिसीजन स्कोर आपको हाई करना है, राइट। और प्रिसीजन स्कोर आप कैसे हाई करोगे, कम ज्यादा करोगे, क्योंकि स्कोर आपका आ गया 0.5 थ्रेशोल्ड के हिसाब से। अब आप थ्रेशोल्ड को कम ज्यादा करके यू विल चेंज द थ्रेशोल्ड एंड यू विल फाइंड आउट द कि मैं प्रिसीजन को कैसे ऊपर ज्यादा मैं उसको कर सकता हूँ। दिस इज द सेकंड एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले उसने मुझे क्या निकाल के दिया था, उसने सिर्फ मुझे प्रेडिक्शन दिया था 0-1 के बीच में। अब मैं क्या करता हूँ, लॉजिस्टिक मॉडल से मैं प्रेडिक्ट ना करके प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी करता हूँ, ठीक है। तो इट विल नॉट गिव मी द आउटपुट 0 और 1, इट विल एक्चुअली गिव मी द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जिस पे थ्रेशोल्ड नहीं लगी है। ओके, सो ये इसमें प्रोबेबिलिटी निकाल के दे दी है। लेट से मैं इसको एक रो और ऐड कर देता हूँ और मैं इसको y, सर ये वही वाली प्रोबेबिलिटी है जो आप उस दिन कुछ डिस्कस कर रहे थे, h x थीटा -1 y कुछ ऐसा करके कुछ आप अरे लिखे नहीं थे, y लगी, -1। बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप फाइनली आपका लॉजिस्टिक, जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल होता है वो एक्चुअली आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि बेसिकली आपकी इस रिकॉर्ड के पॉजिटिव क्लास में होने की, क्लासिफिकेशन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या नेगेटिव क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और फिर हाँ उसके सर, ऊपर। उस दिन आप एक फॉर्मूला बता रहे थे ना, सम h थीटा x रेज टू द ये पावर हाँ 0 और 1 का दिखा रहा है 1 ना, हाँ, ये ऊपर वही दिखा रहा है वो 0 और 1 का है। आई थिंक वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इन बिटवीन एज वेल नाउ। यस, ये क्या करेगा, फिर वो क्या करता है, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उसके बाद फिर थ्रेशोल्ड अप्लाई करता है, फिर आपको 0-1 आपको फाइनल आपको क्लासिफाई कर देता है। ये बेसिकली क्या करेगा, इससे आपको प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, इसके ऊपर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इसमें, राइट, नो क्लासिफिकेशन, ओनली प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट्स से सर पीयूष, मैं ये बोल रही थी कि याद नहीं उस दिन एक प्रोबेबिलिटी का उन्होंने फॉर्मूला लिखा था जिसपे हम सब आई कंफ्यूज हो नो रहे थे कि बाय 1 -1, मुझे लग रहा है वही 1 प्रोबेबिलिटी। माइनस वाई। हाँ, कुछ लिखा था उस दिन, शायद वही वाली प्रोबेबिलिटी है। नहीं नहीं लड़की, ये वो नहीं है, गलत जगह रिलेट कर रहे हो आप, ठीक है ना। ओके, सो ये स्टार्टिंग के 10 प्रोबेबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है, 10 प्रोबेबिलिटीज, ठीक है ना। पहली क्लास मेरी कौन सी थी, व्हाट वाज माय फर्स्ट क्लास, माय फर्स्ट क्लास वाज, हमें कहां से मिली थी वो, यहाँ से, लॉजिस्टिक मॉडल क्लासेस। फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 1, राइट। तो फर्स्ट कॉलम मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, सेकंड कॉलम मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। अगर मैं देखूं मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है, 0 क्लास को बिलोंग कर रहा है, 0 क्लास को होने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.88 और सेकंड क्लास को होने की प्रोबेबिलिटी है 0.11। ओके, ये मेरे को उसने प्रोबेबिलिटी निकाल के दे दी है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आप चाहे ये तो डिफरेंट वैल्यूज क्या है? क्या, पहली रो तो समझ में आ गई, 8.88 एंड 0.11। बाकी सेकंड, थर्ड, ईच एंड फोर्थ एवरी रो क्या है? रिकॉर्ड के लिए बताता है ना वो, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स के लिए आ रहा है ये प्रेडिक्शन करने डेटा। के लिए जा रहा हूँ, तो मैं लेट से मैंने जिस पे ट्रेनिंग किया उसे प्रेडिक्ट किया है। अच्छा, हर रिकॉर्ड के 0 और 1 होने की यस, प्रोबेबिलिटी क्या है? एग्जैक्टली, ये वही बता रहा है, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड के 0-1 के बीच होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसको मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे थर्ड रिकॉर्ड है व्हिच इज स्टक एट 4159 व्हिच इज क्वाइट नैरो। कुछ तो क्वाइट क्लियर नैरो, केसेस हैं, यस, जो बहुत नैरो है, राइट। तो यहीं पर थ्रेशोल्ड काम करेगी ना।
थ्रेशोल्ड तो सब पे काम करेगी ना, फर्स्ट वाले पे मैं थ्रेशोल्ड काम करूंगा तो हाँ मतलब कुछ तो जैसे क्लियर है 90 80 कुछ ऐसे 41 हाँ 51 है, इस पे प्रोबेबिलिटी का इम्पैक्ट आएगा। हाँ, जैसे फर्स्ट वन है इस पे अगर मैं थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी अगर हिलाऊंगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे 41 58 इससे फर्क पड़ जाएगा क्योंकि दिस इज वेरी वनरेबल। ओके, ऐसे Correct. आपका ये देखोगे 42 और 57 वाला, इस पे आपका फर्क पड़ेगा। ओके, हाँ बिकॉज वो तो बाकी आपके क्लियर क्लासिफिकेशन है, ये आपके वो हैं जो कि बेसिकली आपके वनरेबल हैं, वो इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। ओके, क्योंकि इन रिकॉर्ड्स में आपकी क्लासिफिकेशन एरर की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है। ओके, सो फिर आप ये ग्राफ भी बना सकते हो, ये कुछ तो ग्राफ बनाया है जिसमें कि बेसिकली ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1, कितने रिकॉर्ड की प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में होने की है, यानी कि 1, ये 0, ये ब्लू वाला आपका क्या है, व्हाट इज ब्लू, एक्स लेवल एंड वाई लेवल, ये फ्रीक्वेंसीज बता रहा है बेसिकली। व्हाट इज ब्लू वन, व्हाट इज ब्लू वन, एक साथ दो आ रही है ना, अच्छा एक नहीं, एक सर्वाइव एक नॉट सर्वाइव एक ना। नॉन सर्वाइव, राइट। ओके, तो इधर से जाओगे तो बेसिकली ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता चला जाएगा, राइट, दिस इज हाउ दिस वर्क, बकवास। ठीक है, तो ये वही सेम चीज ऊपर मैंने आपको दिखाया। ओके, अब आप 10 सर्वाइव देख सकते हो, ये क्या था 0 to 10, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है जो आपको बेसिकली, अगर आप, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये उसने प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करके दी है, तो इसमें अगर आप देखोगे भी, कंपेयर भी करोगे, क्योंकि ये भी 0 से 10 के बीच में, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है जो सर्वाइव है, तो आप देखोगे तो इसने प्रेडिक्शन किया, ये एक्चुअली 0 लेवल था, आप देखो प्रोबेबिलिटी वो 0.880 बता रहा है, ठीक है ना। सेकंड वन है, बिल्कुल सही है। थर्ड, फिर थर्ड वन आपकी में प्रॉब्लम है, फिर आपकी थर्ड वन में आपकी प्रॉब्लम है, राइट, थर्ड वन में 41 58, राइट, आपका ये एक्चुअली में 1 होना चाहिए, इसने इसको नहीं, थर्ड वन सही तो है, सही है, नहीं Fine. सही है लेकिन बहुत नैरो है। हाँ नैरो है, लेकिन आप देखो लेवलिंग के हिसाब से उसने सही किया प्रेडिक्ट, उसको लेवल के हिसाब से सही सही प्रेडिक्ट किया उसने, क्योंकि लेवल उसका 1 था, ये भी 1 प्रेडिक्ट कर रहा है। फोर्थ वन भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं, भी ये गलत है, फिफ्थ पेज गलत है, ये भी ठीक है। फोर्थ इनफैक्ट फोर्थ वन किसमें वाला प्रॉब्लम है सर, आपके, नाइन्थ में प्रॉब्लम है आपके, नहीं नाइन्थ भी ठीक है, तो शुरू के नाइन्थ में 10 ठीक है। 10 रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, वो हमको देखने से पता चल रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू द, ये 0 से 1 सेम चीजें वही से हम जो कर रहे हैं यहाँ पे, फीचर्स 0 to 1। अब हमने क्या किया, सारी प्रोबेबिलिटी जो हमने वहां से निकाली थी x इक्वल टू फीचर्स 1, सो हमने क्या किया बेसिकली, अब अभी तक तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी मुझे दे रहा था 0 1 की, मुझे सिर्फ 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये मुझे क्या बता रहा है, अच्छा ये बताओ, ये सिंटेक्स मेरा क्या बता रहा है मुझे, लॉजिस्टिक मॉडल डॉट प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स के लिए प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करेगा, जो मेरी प्रोबेबिलिटी मेरी इस तरह के फॉर्मेट में आएगी, ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स के लिए। अब ये सिंटेक्स मुझे क्या बता रहा है, ये जो ये और ये सिंटेक्स क्या बता रहा है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, कैन एनीवन टेल मी। स्टार्ट से 1 के बीच में पर अपर लिमिट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब स्टार्ट्स, नहीं, लोअर लिमिट कुछ नहीं है, अपर लिमिट 1 है। ये आप लोगों ने, आप पाइथन के आप लोगों ने ढंग से नहीं किया इसका मतलब, सर ये स्टेप साइज है। ये पहला कॉलम मैंने कॉमा लगाया हुआ है, कॉमा से पहले क्या है, कॉमा के बाद में क्या है, पहले सिर्फ ये बताओ। कॉमा से पहले जो है स्टार्ट और एंड, मतलब वो डिफाइंड नहीं है, तो पूरा का पूरा ले लेंगे। क्या है लेकिन, कॉमा से पहले है क्या, लेकिन वो स्लाइस ऑपरेटर है। कॉमा से पहले आपके रोज हैं, कॉमा के बाद आपके कॉलम्स हैं, ठीक है, उसमें मैंने कोई लिमिटेशन नहीं दिया तो सारी रोज उठा लेगा, अगर मैं उससे पहले 0 1 देता तो वो उतनी रोज उठाता, कोई लिमिटेशन नहीं तो सारी रोज उठा लेगा, 1 का मतलब सेकंड कॉलम उसको उठाना है, दैट इज दैट। ये क्या कर रहा है, सारी रोज उठा रहा है, उसको सिर्फ सेकंड कॉलम उठा रहा है, कि फर्स्ट कॉलम 0 सेकंड 1 एंड थर्ड फिफ्थ 6, क्योंकि आप कॉलम इससे डिफाइंड है आपके 0 1, तो सेकंड कॉलम उठा रहा है आपका, ये नहीं पता नहीं था सर, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्लास हमने जो कॉलम देखा है ना, ये इन द रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस देखा है। हाँ तो सेम तरीके से काम करता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे आपका एरेज, आपके डाटा फ्रेम हो, चाहे आप डिक्शनरी हो, सब में सेम तरीके से काम करता है ये। तो बेसिकली आपका ये, आप क्योंकि आपका ये आउटपुट मल्टी डायमेंशनल है, सेकंड 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल में क्या काम कर रहा है, फर्स्ट इज योर रो, सेकंड योर कॉलम, सेकंड कॉलम उठा रहे हो आप, सारी रोज उठा रहे हो, तो एक्चुअली मैंने क्या किया, सारे के सारे उसके ये 1 होने की प्रोबेबिलिटी उठा ली, 0 वाले मैंने छोड़ दिए, क्योंकि 0 जितना मुझे 1 की प्रोबेबिलिटी वाली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं क्या प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव क्लास, तो सिर्फ मैंने ये वाली प्रोबेबिलिटी मैंने उठा ली है 1 वाली। ओके, अब मैं देखूंगा तो मुझे ये ऐसे दिखा देगा आउटपुट मुझे, कम ऑन, ये सारी प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई,
1 की प्रोबेबिलिटी सारी। ओके, सो वी आर गुड। कम, अब मिनिमम प्रोबेबिलिटी देखता हूँ सर्वाइव करने की मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, ये मैंने नहीं चलाया अभी। ओके, लेट्स रन इट फर्स्ट, देन रन इट। कहाँ गया भाई? ये आ गया मेरा। अरे नहीं, कहाँ चला गया? ये आ गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो भाई अब आप देखोगे तो उसने बेसिकली 0.028 उसे सर्वाइव करा दिया है, यानी कि यहाँ पे मेरा राइट, जबकि लॉजिक के हिसाब से उसको 0.0280 मिनिमम प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी सर्वाइव 0.0280। ये मिनिमम है? नहीं, ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी है 0.028, यानी कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी है ना, ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी मतलब इससे कम प्रोबेबिलिटी तक नहीं है इस सिस्टम में, ठीक है। तो जाहिर बात उसको उसने जीरो प्रेडिक्ट किया होगा 5 के हिसाब से, ठीक है। अब हम आते हैं आरओसी कर्व पे। अब हम इसका आरओसी कर्व बना के देखते हैं। दिस इज माय आरओसी कर्व, ठीक है। मैट्रिक्स आरओसी कर्व एफपीआर, टीपीआर और थ्रेशोल्ड के बीच में बनेगा। सर्वाइव, और ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बनता है। ट्रेन सर्वाइव मतलब फाइनल आपका क्या है, आपका आउटपुट है ट्रेन सर्वाइव, यानी एक्चुअल सर्वाइव जो मेरा था, और उसके ऊपर मैंने क्या प्रोबेबिलिटी निकाली है, ये प्रोबेबिलिटी मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट की है। उसके ऊपर मैं क्या बनाता हूँ, चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी जो ऊपर से मेरी आई है। तो मेरा आरओसी का मेरा ऐसा आ गया। तो आरओसी अगर आप देखोगे तो मोरलेस सही काम कर रहा है। देखो दिस इज गुड, आपका स्कोर ज्यादा है तो आपका मोरलेस अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मुझे क्या ही चाहिए इस केस में। तो आरओसी का मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो बताओ काम करेगा। दिस इज गिविंग मी द एक्चुअल पिक्चर और नॉट? ट्रू पॉजिटिव रेट, सर ट्रू पॉजिटिव रेट भी जानना अच्छी बात है, क्योंकि मेरे अगर मैं देखूं तो यहाँ मेरे सर्वाइव ज्यादा थे और सर्वाइव कम थे, नॉन सर्वाइव मेरे ज्यादा हैं। तो दिस इज इनबैलेंस डेटा, राइट? राइट और रॉन्ग? राइट। तो उस केस में आरओसी का विल नॉट गिव मी राइट पिक्चर, क्योंकि मेरी इम्बैलेंस है। तो आई हैव टू गो फॉर द प्रिसीजन एंड रिकॉल कर्व, क्योंकि मुझे प्रिसीजन हाई करना है। मेरा ट्रू पॉजिटिव दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन वो ट्रू मेरा आरओसी का तब अच्छा काम कर रहा है जब मेरी क्लास बैलेंस होती है। अगर मेरी क्लास इम्बैलेंस है देन आई हैव टू गो फॉर द प्रिसीजन एंड रिकॉल कर्व। ओके, और दूसरी अंडरस्टैंडिंग मेरी क्या है, मेरे को प्रिसीजन मेरे को हायर साइड में करना है। फाइन, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लोग प्रिसीजन और रिकॉल का कर्व बनाते हैं। पता नहीं यहाँ चलेगा नहीं चलेगा, ऊपर का भी बनाया नहीं है, ठीक है। ओके, अब हमने एक फंक्शन लिखा, दिस माय फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली मैं इसे कोई भी थ्रेशोल्ड दूंगा, उस थ्रेशोल्ड के हिसाब से क्या करेगा, मुझे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी मुझे निकाल के दे देगा ये, राइट। सिर्फ इतना काम करेगा। ओके, लेकिन हमें अभी टीपीआर और एफपीआर तो देखना नहीं है ना, हमें तो नहीं देखना है, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं देखना। हमने कहा ही नहीं कि आपको देखना है, हमारा आगे यूज होगा ये, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, बेसिकली आपका थ्रेशोल्ड के हिसाब से ये क्या कर रहा है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी मुझे निकाल के दे रहा है उस कर्व के लिए, ठीक है ना। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1.5 हाँ 0.5 होगा तो इस कर्व के हिसाब से, क्योंकि मैंने ये कर्व बना दिया उसी कर्व, ठीक है। तो हर थ्रेशोल्ड के हिसाब से बेसिकली मुझे फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव निकाल के दे रहा है, ठीक है। उसके तो बेसिकली थ्रेशोल्ड डिफॉल्ट इज 0.5 ना। 0.5। अब उसको चेंज भी कर सकते हो, वो फॉर्मूला मैंने सेम लिखा है यहाँ पे। अगर आपका थ्रेशोल्ड इतना है तो बेसिकली उन्होंने बेसिकली आपने एक मेथड डिफाइन कर दिया ना अपना। यस, जो मेथड एक्चुअली यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर मैं डिफरेंट थ्रेशोल्ड लूं तो हिसाब से ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट कैसे निकालता है, ग्राफ कैसे बनाता है, दिस इज सेम थिंग। अगर मैं उसको 0.5 दूंगा तो सेंसिटिविटी इतनी आएगी, स्पेसिफिसिटी इतनी आएगी, वो ग्राफ में प्लॉट कर देगा। 0.3 दूंगा तो ऐसे आएगा, ये प्लॉट कर देगा। तो उस हिसाब से उसने प्लॉटिंग की हुई है। ओके, अब मुझे बताओ मेरी सेंसिटिविटी की जो फॉर्मूला लगाया ये क्या है? ट्रू पॉजिटिव रेशियो इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड पे जितनी टीपीआर है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 माइनस थ्रेशोल्ड, यानी इसे टोटल थ्रेशोल्ड माइनस होने का क्या मतलब है? थ्रेशोल्ड सर थ्रेशोल्ड्स जितने भी मतलब जितने भी हमने थ्रेशोल्ड दिए हैं वो नॉर्मल थ्रेशोल्ड से जितने बड़े हैं वो एक सीरीज दे देगा ट्रू फॉल्स वाली, जो कि इस टीपीआर पे लगेगी। थ्रेशोल्ड माइनस होने का मतलब जो थ्रेशोल्ड जितने भी है, थ्रेशोल्ड माइनस होने कितना मतलब हाईएस्ट थ्रेशोल्ड कितनी होती है मेरी 1, राइट।
यही हो ना, थ्रेशोल्ड -1 का मतलब यानी ये कितनी वैल्यू देगा 1, यानी कि टीपीआर थ्रेशोल्ड पे जो मेरी वैल्यू आ रही है उस पे टीपीआर कितना है, तो उसमें से उसको माइनस करके फिर ये टीपी वो निकाल रहा है सेंसिटिविटी। ओके, तो थ्रेशोल्ड -1 का मतलब थ्रेशोल्ड -1 जो वैल्यू मेरी कितनी एक्चुअली 1, 0.5 0.5 क्यों है, 1 हो गई ना। नहीं, थ्रेशोल्ड ऑलरेडी 0.5 है। थ्रेशोल्ड 0.5 कहाँ है, मैं तभी की बात कर रहा हूँ। थ्रेशोल्ड आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0.1, 0.2, 0.3, लेके 1 तक जाती है आपकी थ्रेशोल्ड, राइट। तो थ्रेशोल्ड -1 का मतलब लास्ट, यानी कि थ्रेशोल्ड, क्योंकि मुझे नहीं पता इनफाइनाइट कितनी वैल्यू है, -1 उठा ली मैंने, तो थ्रेशोल्ड तो -1 का थ्रेशोल्ड -1 कहाँ लिखा हुआ है? वो तो वो एक -1 अलग लिखा है ना। स्क्वायर ब्रैकेट में है और -1 एक अलग स्क्वायर ब्रैकेट में है। अब उसको इकट्ठे क्यों पढ़ रहे हैं हम, मतलब उसको इकट्ठा क्यों पढ़ रहे हैं? वो एक पहले कंपैरिजन हुआ है, फिर एक दूसरे ब्रैकेट में -1 हुआ है। टीपीआर थ्रेशोल्ड इक्वल टू थ्रेशोल्ड -1, एक मिनट, -1 अलग मैट्रिक्स में लिखा हुआ है और थ्रेशोल्ड इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एक स्क्वायर ब्रैकेट में है। इस मैंने सिंटैक्स का खुद, मतलब क्या है? हाँ, ये दो मैट्रिक्स दिख रही है, मतलब दो कॉलम जैसे होता है ना, ए और बी ऐसे लिखते हैं, लिखा ही अलग तरीके से हुआ है कुछ। पहले ऐसा लग रहा है कि कुछ कंपैरिजन हो रहा है ग्रेटर देन का, उसके बाद कुछ -1 लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपके कंप्लीट थ्रेशोल्ड्स हैं, इसका मतलब ये थ्रेशोल्ड आपकी यहाँ से आ रही है। ओके, माय मिस्टेक, मैंने इसको गलत तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये क्या अब उसके हिसाब से क्या कर रहा है ये, अगर मेरे थ्रेशोल्ड, तो मेरी ये थ्रेशोल्ड मेरी आई है, ठीक है, और ये मेरी कंप्लीट ये थ्रेशोल्ड्स हैं। कहाँ से आई है? ये तो ये वैल्यू पास कंप्लीट करेंगे ना हम फंक्शन में। ये तो थ्रेशोल्ड आपकी अच्छा, कंप्लीट ये थ्रेशोल्ड्स हैं, थ्रेशोल्ड्स आ गए। हाँ, कंप्लीट तो वो जो थ्रेशोल्ड्स हैं आपने आपके, थ्रेशोल्ड दिए वो उसको हर उसको उसमें आपकी से जो माइनस कर आपने दिया पैरामीटर इसने, ठीक है ना। सबसे कंपेयर करेगा वो, मतलब जैसा भी हाँ, है कुछ तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू उठा जितनी लेगा भी ये। थ्रेशोल्ड है। -1 फिर क्या है? ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली उस थ्रेशोल्ड पे जो जो आपने थ्रेशोल्ड दिया उसमें से कंप्लीट थ्रेशोल्ड में से माइनस करेगा, उसकी लास्ट वैल्यू पिकअप करेगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू पिकअप करेगा उस थ्रेशोल्ड पे। जो ट्रू पॉसिबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपको पिकअप करके दे देगा ये। ऐसे 1 - FP आएगी थ्रेशोल्ड, लेट से मेरे पास थ्रेशोल्ड कितनी है, बहुत सारी सर आप थ्रेशोल्ड। एक 0.5। बार सिर्फ प्रिंट थ्रेशोल्ड्स करना, एक बार ये देखते कि थ्रेशोल्ड्स में आता क्या है। हो सकता है पूरे कह रहे आता, ये कर रखा है आपने। हाँ, ये आपकी सारी हाँ, थ्रेशोल्ड्स आ गई हैं, 1.96 प्रिंट थ्रेशोल्ड्स। अच्छा ये, हाँ, अच्छा ये सारे डेटा की थ्रेशोल्ड्स हैं और वहां पे आपने एक लिमिट दी होगी थ्रेशोल्ड की, जैसे 0.3 या 0.5 जो आप अपने ये मेथड से डिफरेंट भेजोगे। थ्रेशोल्ड्स पे से ग्राफ बनाया हुआ बेसिकली, ये डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स हैं, सर कि 0.026 अगर कुछ ग्रेटर देन आ जाएगा तो -1 सेट हो जाएगा, शायद ऐसा कुछ है। 1.96 आएगा, जो वन आपकी लास्ट वन है, जो अपने वन से आपने 1.96 ज्यादा ले कैसे आ ली रहा है, है? आपने बेसिकली एक से भी ज्यादा ले ली है थ्रेशोल्ड, ठीक थ्रेशोल्ड है। तो 0 1 के बीच में होता है ना, ये पॉइंट 1.96 कहाँ 1.96 से आ एक्चुअली उसको रहा है? लिमिट करने के लिए इसने लास्ट थ्रेशोल्ड ये लेके चलते हैं, इसको लिमिट करने के लिए, तो 1.96 उन्होंने ले लिया। ओके, जो आपके इस चार्ट से बाहर चली जाएगी आपकी। ओके, ये वाली। नहीं, इसका अगला वाला अगर आप देखोगे तो हम्म, सेम है, पॉइंट नहीं ये कम है 96 ना, ही है वो। पॉइंट, हाँ ये नहीं कम नहीं, है ना अगला वाला, अगला कॉलम। हाँ, भाई, कम सेम है ना वन वैल्यू से, है, ये बस वन से उसने, कम है बेसिकली। नहीं 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 नहीं, उसके आगे उसने 1 लगा दिया, बस 1 पॉइंट बना दिया इसको। हाँ, इसको 101 से ज्यादा कर दिया उसने, इसको थ्रेशोल्ड को, इसको थ्रेशोल्ड, ये आपके डिफरेंट थ्रेशोल्ड आई थिंक कितनी, मुझे नहीं पता कितनी, 1 2 3 4 5 6, आई डोंट नो कितनी कॉलम्स हैं, कितनी वैल्यूज है। तो ये क्या करेगा, जो आपके थ्रेशोल्ड आएगी उस थ्रेशोल्ड को थ्रेशोल्ड से माइनस करेगा। थ्रेशोल्ड्स कितनी है कंपेयर आपकी, कर रहा है बस सर, बस कंपेयर कर रहे हो। हाँ मतलब उस, देख रहे हैं कि जितनी भी थ्रेशोल्ड्स हैं और जो आपने यहाँ पे एक लिमिट दी होगी अपने मेथड में, हाँ उसको ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं। उसके बाद -1 का नहीं समझ, या -1 -1 लास्ट सेट। वैल्यू, यानी कि थ्रेश ये क्या करेगा बेसिकली, जैसे कि आपने आपकी साइड टोटल थ्रेशोल्ड्स हैं और आपने जो उसको थ्रेशोल्ड दी, लेट्स से आपने थ्रेशोल्ड उसको 0.25 देगी, 0.25 आपको वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो आपके थ्रेशोल्ड्स में से 0.5 घटा देगा, तो सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, उन सबके ऊपर ही क्या करेगा, टीपीआर निकालेगा, और टीपीआर की जो लास्ट वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, वो वैल्यू आपको निकाल के दे रहा है, लास्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि उसको टीपीआर की लास्ट वैल्यू जो आपकी आएगी, यानी लास्ट वैल्यू का मतलब आपके टोटल थ्रेशोल्ड्स आ गई, आपकी टोटल थ्रेशोल्ड आई यहाँ से, जब आपने एरोसी कर्व बनाया था, एरोसी कर्व के हिसाब से जिस जो कंप्लीट थ्रेशोल्ड जिसको बोलते हैं एरोसी कर्व बनाया है, ठीक है। उस कंप्लीट थ्रेशोल्ड को आपने जिस थ्रेशोल्ड पे आपने सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी निकालनी है, ये उस थ्रेशोल्ड को सारे थ्रेशोल्ड से माइनस करता है। नहीं, माइनस नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा माइनस है कि नहीं करता, कंपेयर करता जितनी है भी बस। सारी थ्रेशोल्ड्स आपकी उस थ्रेशोल्ड से बड़ी हैं, ठीक है ना, जितनी भी थ्रेशोल्ड्स आपकी उस थ्रेशोल्ड से बड़ी हैं, उस सारी थ्रेशोल्ड्स पे क्या करेगा, टीपीआर निकालेगा, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू को उठा के आपको दे देगा, ये कर रहा है। ओके, -1 का क्या रिलेवेंस?
यही कर रहा है ये। आपके उन सही थ्रेशोल्ड पे उससे बड़ी वैल्यू उठा लेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको उठा के दे देगा। ये सेम चीज यहाँ पे कर रहा है। चलो मैं इसकी डिटेल देखूंगा, डिटेल यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन बेसिकली आपको बता रहा है कि थ्रेशोल्ड आपको दी हुई है जिस हिसाब से आपका ग्राफ ये प्लॉट हुआ है, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं यहाँ पे कि हम बेसिकली उसकी वैल्यू चेंज कैसे करेंगे। मेरे पास प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई है, ठीक है, ओके। अब मुझे बेसिकली, अब मेरा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे लिए ये है कि मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे प्रिसीजन को हाई करना है और रिकॉल को मुझे कम करना है। तो उसके लिए थ्रेशोल्ड जो है मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ओके। सो दिस इज योर बाइनराइज क्या करता है, आपकी प्रोबेबिलिटी को आपके थ्रेशोल्ड के हिसाब से चेंज कर देता है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग के बाइनराइज को मैं इंपोर्ट करूंगा और जो मेरी प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी जो मेरी आई है, दिस वन, कहाँ गई मेरी प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी, ये वाली, कहाँ गई मेरी प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज, ये वाली, ओके। इसके ऊपर क्या करेगा, 0.5 के हिसाब से क्या करेगा, ये उसकी क्लास देगा। पहले 0.5 के हिसाब से क्लास बना था, अब ये 0.25 के हिसाब से क्लास बनाएगा। तो ये 0.25 के हिसाब से क्या कर दी इसने, क्लास बना दी सारी। तो अब मैं इसको पॉइंट करूंगा तो इसने 100, अब मैं 0 दूंगा तो ये दी। तो इसने बेसिकली अब क्या किया, पहले मेरा जो क्लासिफिकेशन हुआ तो 0.5 के हिसाब से होता, मेरे क्लासिफिकेशन 0.25 के हिसाब से हो रहा है। इसने सिर्फ ये काम किया है। तो अब मेरी फाइनल प्रेडिक्शन क्लास मेरी वाई प्रेडिक्ट क्लास हो गई है, जिसमें क्लासिफिकेशन मेरा 0.25 के हिसाब से हो रहा है। तो इसमें अगर आप, मैं प्रिसीजन और रिकॉलर ग्राफ बना के देखूं, दिस इज योर, मैंने 0.25 कर दिया, तो 0.25 के हिसाब से मेरा स्कोर कितना आ रहा है। अरे चला ही नहीं है अभी, ओके, इसको चलाना पड़ेगा। रन रन और नाउ इट इज रन। तो आपका स्कोर देखोगे तो प्रिसीजन का स्कोर मेरा 0 के लिए मेरा बढ़ गया है। व्हाट डज इट मीन, मुझे किसके लिए प्रिसीजन बढ़ाना है, मुझे 0 के लिए बढ़ाना है, मुझे 0 के लिए बढ़ाना है कि 1 के लिए बढ़ाना है मुझे प्रिसीजन। जीरो इज द सर्वाइवल ना, नहीं, 1 इज सर्वाइवल ना, 1 इज सर्वाइवल। लेट्स मेक ए प्रिसीजन रिकॉल कर्व फर्स्ट। ये आपका प्रिसीजन और रिकॉल का कर्व है, ओके। इस केस में आपको, ये आपके डिफरेंट आपको उस पे बनाया हुआ है। इस केस में आपका प्रिसीजन बढ़ रहा है तो रिकॉल कम हो रहा है, ठीक है ना। इस केस में अगर आप मैं देखने जाऊं, इस केस में मेरी, आई डोंट नो, ये आपकी 000 है, ठीक है, ओके। जहां पे आपका ये 00 यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाता है, आपका यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। जो उसका रिवर्स है, ये आपका बेसिकली, ये आपका 0 पे है, ये आपका 1 पे है थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे कौन सी मुझे प्रिसीजन, मुझे हाई चाहिए। तो प्रिसीजन हाई के लिए मैं कहाँ, किस तरफ में मूव करना चाहिए मुझे प्रिसीजन हाई चाहिए। ये आपका 0 की तरफ मूव कर रहा है, राइट, दिस इज मूविंग ऑन द टर्म ऑफ 0। तो यहाँ पे अगर मैं उसको 0 की तरफ मूव करूंगा तो मेरे प्रिसीजन कम होता चला जाएगा। मुझे प्रिसीजन हाई करना है, इसका मतलब मुझे थ्रेशोल्ड किस तरफ मूव करनी है, मुझे 1 की तरफ। तो एक्जैक्टली वही सेम चीज आपको यहाँ दिखाई भी दे रही है, क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड मैंने कितनी कर दी थी, 0.25, इसलिए मेरा प्रिसीजन, मेरा 1 वाला मेरा प्रिसीजन मेरा कितना हो गया, कम हो गया, 0.62 पहले ज्यादा था मेरा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इसको हायर साइड पे करना है। 0.75 करना पड़ेगा, 0.75। लेट से मैं इसको, लेट से 0.75 कर देता हूँ। 0.75 करने के बाद लेट से अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाता हूँ, तो मेरा 0.96 हो गया ये, राइट। तो यही मुझे चाहिए भी। तो ये आपको इस तरह आपको आपका प्रिसीजन रिकॉल कर आपको हेल्प करता है। चलिए लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ आया। लास्ट वाला पॉइंट ये है, जैसे उसका ये आपने जो बनाया था ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट का जस्ट रिवर्स होता है। ये आपका ट्रू पॉजिटिव रेट हो गया प्रिसीजन, ये आपका रिकॉल। यहाँ पे आपके ये आपकी थ्रेशोल्ड 0 है, ये आपकी थ्रेशोल्ड 1 है, ठीक है ना। या ये थ्रेशोल्ड 0 मान लो, थ्रेशोल्ड 1 मान लो, उसका जस्ट उल्टी होती है ये, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है, थ्रेशोल्ड 0 है, ठीक है। अब आप देखोगे थ्रेशोल्ड 1 के आसपास इसका स्कोर ज्यादा है और थ्रेशोल्ड जैसे जैसे आपकी कम होती जा रही है वैसे वैसे आपका प्रिसीजन का स्कोर आपका कम होता जा रहा है, ओके। यानी कि बेसिकली आप थ्रेशोल्ड जितना आप हायर रखोगे उतना प्रिसीजन आपका बेसिकली हाई आएगा, ओके। तो इसका मतलब आपको थ्रेशोल्ड आपको हायर करनी है, क्योंकि आपको अगर प्रिसीजन हाई चाहिए तो आपको थ्रेशोल्ड आपको हायर साइड पे करनी पड़ेगी, ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड आपने क्या कर दी, 0.75 कर दिया हमने। तो आपका ये आ गया। लेट से मैं इसको अब 8 करके देखता हूँ, 0.8 या 0.9 पे और भी खराब हो जाता है क्या, 0.97,
ओके सो मुझे बेटर स्कोर मिल रहा है, तो मेरे लिए प्रिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे इस तरह उसको चेंज करके आई कैन फाइंड आउट द बेस्ट वैल्यू। और कम हो गया, सो दिस इज नॉट गुड। ओके सो वही आपके 0.9 इज बेटर, 0.9 पे आपके सबसे बेस्ट वैल्यू आ रही है। सो दिस इज आपकी 0.97 तक पहुंच जाती है ना, सो दैट इज द पॉइंट यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो नाउ यू कैन फिक्स इट इन द प्रोडक्शन कि आपकी यहाँ पे जब लिमिट जाएगी थ्रेशोल्ड, आपकी थ्रेशोल्ड जाएगी ऑलमोस्ट आपके 0.9, तो 0.9 लोगों को बेटर रिजल्ट मिल रहा है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये आपको चेक करना होता है कि बेसिकली आपको अगर इक्विवेलेंट क्लासेस हैं तो यू विल गो फॉर द फॉल्स पॉजिटिव रेट, आप फॉल्स पॉजिटिव रेट चेक करोगे, ठीक है ना। अगर आपकी क्लासेस बैलेंस है, तो अगर आपकी क्लासेस इम्बैलेंस है उस केस में फिर आप प्रेजेंट चेक करोगे सेम बिजनेस केस के लिए, ठीक है, लेकिन आप कौन सा देखोगे, बिजनेस और रिकॉल वाला कर्व। ओके दिस इज एज सिंपल एज दैट। उस हिसाब से फिर आप अपने ये ऊपर नीचे चेंज करके देखोगे। ओके सो उस केस में बाय डिफॉल्ट बाइनरी जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो 0.5 पे काम करता है। अगर आपको 0.5 पे काम नहीं करना है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, देन यू हैव टू बाइनराइज योर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। आप उसको बाइनराइज करो, बाइनराइज करने के बाद फिर आप उसको सेट करो, वो आपको फिर फाइनली वो आपको उस हिसाब से आपको वैल्यूज देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे उसको 0.9 सेट कर दिया, 0.9 के बाद आपकी प्रोडक्शन क्लासेस आ गई, उसके हिसाब से फिर आप अपना क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाओ। ओके ओके कितना, कोई कंफ्यूजन? सर वो तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के पता चलेगा। तो ठीक है, यू गाइस डू वन थिंग, ठीक है ना, आप एक बार आरओसी कर्व और प्रिसिजन वाला कर्व एक बार पढ़ के देखो, आराम से पढ़ो उसको, दोनों चीजों को, ठीक है। जो मैंने लिंक दिया उस लिंक पे सबके बारे में डिटेल है, ठीक है ना। इस लिंक पे एक बार पढ़ लेना, और जो डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, दिस लिंक इज गिवन टू यू, दिस लिंक, ओके, मशीन लर्निंग पे है ये, आरओसी कर्व्स एंड प्रिसिजन रिकॉल कर्व्स। तो आप बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद कम बैक टू दिस कोड, और इस कोड को जो मैंने सारी आपको चीजें बताई हैं वो सब करके देखो उस पर एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोड एंड ट्राई टू फाइंड आउट इस स्कोर को 0.9 से वैसे बेटर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप 100% पे काम कर जाओ, हो सकता है कि आप ढंग से अगर आप उसकी हो सकता 1 हॉट एनकोडिंग करोगे, या उसका आप जो हमने और भी नहीं किया उसका स्केलिंग नहीं की, या फिर आप उसमें जो भी मैंने आपको 5-6-7-8 पॉइंट बताए उसको करके देखो कि आपका स्कोर 0.9 से ज्यादा जाता है कि नहीं जाता है, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। ओके गुड, ठीक है सर। सर एक मैं क्वेश्चन ये था। वाला जो कोड है किधर पे रखा हुआ एग्जैक्टली, इसका लोकेशन एक बार बैक कर। जी मैं आपको भेज देता हूँ, शायद वहाँ पे होगा नहीं, पता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ठीक सारे है। चेंज किए हैं, ठीक है ना। ओके तो ये कोड मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, और मैं आपको ये पाइथन वाली शीट भी भेज देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये लॉजिस्टिक और क्या बचा भाई, दो ही, और आपको स्लाइड भी भेज देता हूँ अपडेटेड वन। की डेटा फाइल भी चाहिए सर होंगे आप उसमें सर आप एक काम करना, जब आप ये भी उस ड्राइव में डाल रहे हो तो डेटा सेट भी डाल देना, पता चले हम उधर ही हाँ कहीं डेटा घूम सेट रहे भी डेटा चाहिए। सेट। डेटा सेट्स में इसमें डाल दूंगा, ठीक है, डन रहा। ओके ठीक है चलो, सर। वो एक और tomorrow सर क्वेश्चन 11 था। सेम टाइम। मैं टाइम मतलब 11:30 रहेगा, ठीक है ना। अगर होगा 15-20 मिनट आगे पीछे तो आई विल कंफर्म, ठीक है। अजय सर एक क्वेश्चन था। सर मेरे को ये जानना है कि हम जब भी मॉडल ट्रेन करते हैं, अप्लाई करते हैं उस पे, जस्ट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म से, तो उसमें ग्रेडियंट डिसेंट एट द बैक एंड अपने आप लग जाता यस है अपने ये? आप लगता है, जैसे आपने डॉट फिट लगाया, ठीक है ना, डॉट फिट लगा दिया, काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब ग्रेडियंट डिसेंट हमें अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई जगह नेट पे उन्होंने दिखा रखा था, आप भी बता रहे थे कि हम दिखाएंगे वो, मतलब लाइन कैसे कैसे शिफ्ट वो होती है बोल ग्रेडियंट हाँ, वो डिसेंट। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंडर शायद बोल रहे थे वो, क्या समझा नहीं जो मैं, फिर लर्निंग बताओ। रेट है। हाँ लर्निंग रेट आप चेंज कर सकते हो अगर, लेकिन वो लर्निंग रेट की अभी अब तो हम बहुत स्मॉल डाटा सेट यूज कर रहे हैं, तो आपको लर्निंग रेट छेड़ने की जरूरत है नहीं। आपके पास बहुत बड़ा डाटा सेट है और आप बहुत टाइम लग रहा है उसको ट्रेन होने में, तो फिर आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो।
लेकिन ये प्रॉब्लम तभी आती है आपका बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा सेट होता है, आपके बहुत सिंपल डाटा सेट पे हम काम कर रहे हैं। जब आप जैसे इमेज पे काम करोगे या आप उस पे काम करोगे तो उस केस में फिर आपका स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट या फिर आपका एडम या फिर आपका वो सब चीजें आपकी फिर बाद में आती हैं, ज्यादातर वो आपके डीप लर्निंग में यूज होती हैं, क्योंकि डीप लर्निंग में आपके ज्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स बनते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स उसकी ट्रेनिंग होती है तो बहुत टाइम लगता है। तो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग में आपको ये एडम या स्टोकास्टिक इन सब की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट से आपका काम चल जाता है। ठीक है सर। ओके ठीक है सर। ठीक है, तो आप इसको करके देखो